Yes, hello everyone. Am I audible, guys? Yes. Yes, Yes, ma'am. Okay. ठीक है. सबसे पहले वेलकम टू द PIDM's इंट्रोडक्टरी सेशन. वी विल स्टार्ट द सेशन विथ योर इंट्रोडक्शन. उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ. ओके. तो आपको अपने yes. इंट्रोडक्शन में आपको अपना नेम बताना है, आपका एजुकेशन बताना है, एंड व्हाई यू वांट टू डू अ डिजिटल मार्केटिंग. ओके. तो मैं थोड़े से नोट्स भी लेती हूँ कि आप लोग क्यों करना चाहते हैं. सो मुझे भी एक आइडिया आ जाएगी कि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहते हो. ओके. चलिए. तो वी विल स्टार्ट विथ मानसी. Yes. Hello. यस. हाँ, यस, हेलो. Hello, ma'am. Hello, everyone. Myself, Mansi Jadhav. I'm from Nagpur, Maharashtra, and I'm currently not actually pursuing any degree or anything else. I completed my graduation in 2023 itself, and after that, I shifted to competitive exams. I cleared SBI prelims and given mains recently, but I also wanted to start something else, like other than that, as a backup or something that I can discover. So digital marketing was always in my mind. So here I am. I've heard about PIIDM always, so I wanted to start something. So yes, that's why ओके. yeah. अभी मानसी वर्किंग हो अभी, मतलब पोजीशन पे? No, मैं फ्रीलांसिंग या एनजीओ वर्क्स वगैरह करते रहती हूँ एंड साथ साथ में एज आई सेड मेरे पूरा फोकस अभी मैं इस पे ही था, एग्जाम्स पे. सो ओके. इससे ओके, पुणे में ही प्रिपरेशन करते थे? या मैं पुणे में थी बैक देन इन 2024, बट ओके. उसके बाद आई थॉट कि घर पे आके सेल्फ स्टडी वाज बेटर, सो इसलिए एंड रिजल्ट्स भी मिले. आई रिसेंटली गिवन सीईटी एज वेल, सो ओके. आई एम लुकिंग फॉर एमबीए कॉलेजेस दिस ईयर. ओके. ओके मानसी. एंड एजुकेशन बैचलर किसमें किया है आपने, ग्रेजुएशन? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केट. ठीक है, BBA लिख देती हूँ. ओके. यस यस. चलिए. मानसी के बाद अनुजा. अनुजा, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए. अनुजा, एम ऑडिबल? ठीक है. भूमि, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए. Hello, ma'am. हेलो. Yes, am I audible, ma'am? यस, यस, यू आर ऑडिबल. Yes. So I'm Bhumi Wagai, and I'm an MBA graduate. I am here actually for a demo class. I haven't registered for it yet. So ओके, नॉट एन yeah. इश्यू. Yes. आपका पर्पस क्या है? मतलब आप Uh, जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस क्या yes, करना है? job, ma'am. जॉब. ओके, वेरी गुड. Yes. ठीक है. So यस, अंडरस्टूड. MBA ग्रेजुएशन है, जॉब MBA कब हुआ है, अभी हुआ है? yes, just recently. यस, ओके, ठीक है, नॉट एन Yes. इशू. गार्गी. Yes, hi. गार्गी, हाय. Hi. I have done my master's in arts and I've been working for the past 2 years as a content writer. I ओके. basically work in tech. So, yeah, स्पेसिफिकली टेक्निकल राइटर हो? not technical writer. I write technical blogs. So, not exactly technical documentation and stuff. I dabble into it, but not completely into it. So, content ओके. and technical, both, a mix of both. और अब मतलब अपस्किल करना है? Yeah, I want to shift to digital marketing. That has been my goal. फ्यूचर गोल? Yeah, यस. future goal regarding this. So I want to actually pivot to this field completely since I ओके. have gained quite some experience in the content field. So Yes, yes, very good. yeah, Content is the king in digital marketing, right? yeah, You know that. Yes, yes. Gargi. yeah. ठीक है. Also, my spelling is GARGEE. I'm ओके. sorry. Yeah, नॉट एन इशू. yeah. अभी क्या है ना, आफ्टरनून के बैच में भी सेम है गार्गी, तो मैं Right, right, एक्चुअली right. ये Yes. अभी बराबर है? Yeah, yeah. Great. Thank you so यस. much. यस, गार्गी के बाद हेमलता. चलिए, इंट्रोड्यूस कीजिए हेमलता, आप अपने आप को. Hi, my name is Hemlata. I have done हाँ. MCA and I was a software tester before, but right now I want to shift to digital marketing. I want to do my own business or maybe freelancing or something.
Okay. Can I ask why you want to shift to a digital marketing? Actually I had a huge gap in my software testing career because of my accident. Oh, So I'm not okay. able to join again. So Okay. I just want Understood. to yeah, but I Hmm. I don't have any knowledge about digital marketing, so I haven't हाँ, registered. यस, इसीलिए आप आज का डेमो ज्वाइन कर रहे हैं, राइट? जिसको नॉलेज नहीं, डेफिनेटली यू विल गेट द नॉलेज, राइट? Okay. हर्षदा, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। यस मैम, मेरा नाम हर्षदा आराध्य है। हाँ हेलो। हाँ, यस हाँ, यस, यू आर ऑडिबल। मैं अभी एक हाउसवाइफ हूँ। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मतलब नया जॉब सर्च करने के लिए, करियर के दृष्टि के लिए करना चाहती ओके, वेरी गुड। और ग्रेजुएशन किस में किया है? ग्रेजुएशन, हूँ। पोस्ट अभी ग्रेजुएशन? हाँ, BSc IT किया है मैंने ओके 2013 में। ओके, ठीक है। ओके, किरण, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। Hello everyone, my name is Kiran Hooda and I am in SP Jain School of Global Management. I'll be pursuing second year in BBA and I wanna do digital marketing because just a skill. अब स्किल एंड फ्यूचर में जॉब करना चाहोगे, डेफिनेटली? No, not like job करना चाहूंगी but just for the skill. ओके, ठीक है, मेघना, अंडरस्टूड। पूजा, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, पूजा। Hello, my name is हेलो। Pooja Somanji. Yeah, hi, I'm audible. यस यस, यू आर ऑडिबल, प्रिया। पूजा, सॉरी, Yeah, पूजा। my name is Pooja. I'm from Gumla, Jharkhand, and I'm housewife. I learned digital marketing because I want to build a skill, and job is priority. That's why skill add होगा तो job भी easy होगा मुझे. ओके, अंडरस्टूड, प्रिया। एंड एजुकेशन किस में आपका? Graduation, हाँ, किस में कर? सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट commerce. आपने किरण का क्वालिफिकेशन और ऑब्जेक्टिव मेघना में लिख दिया है, सो आई एम ओ मेघना। सॉरी, किरण, मैंने आई थिंक मेघना को अनम्यूट ही नहीं किया। अभी बराबर है? हाँ, ठीक है। प्रिया का हो गया ना इंट्रोडक्शन? नहीं, पूजा का हुआ था लास्ट. प्रिया, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, प्लीज। प्रिया, अनम्यूट कीजिए और इंट्रोड्यूस कीजिए, प्लीज, जल्दी से। Hi Nikita, Priya just texted me. She has some mic issues. She's in the metro actually. ओके, नॉट एन इशू, Yeah. ठीक है, ठीक, So नॉट एन she's a इशू। friend of mine. She's working as a graphic designer and she also has the same goal regarding this course. ओके ओके, अंडरस्टूड करके, यस। Yeah. रोहित, इंट्रोड्यूस कीजिए, प्लीज। हेलो मैम। हेलो। मैम मैं अभी +2 मतलब कंप्लीट किया है, तो बीकॉम में एडमिशन लिया है। ओके, तो एंड व्हाट इज द गोल? जॉब और फ्रीलांसिंग ही करेंगे। ओके, ठीक है। ओके। आज के जनरेशन बहुत फास्ट है, 12th के बाद ही डिसीजन ले रहे, वेरी गुड। ऐसे ही है मैम फिर। यस, टाइम के साथ चलना ही पड़ता है, देयर इज नो ऑप्शन, राइट रोहित? यस मैम। सुजीत, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, सुजीत। हेलो मैम, हाँ, बोलिए। माई सेल्फ सुजीत। मैं अभी MBA परस्यू कर रहा हूँ। ओके हाँ, और मैं जॉब करना चाहता हूँ। ओके ओके। मेघना, आई थिंक मेघना ही रह गई है। मेघना, इंट्रोड्यूस कीजिए जल्दी से। Hello everyone, I'm Meghna from Pune. I have done MBA in human resource and I have a industrial experience about more than 6 years. ओके So after parenting gap about 5 years now, I think I should upskill myself and यस, I want to try in digital marketing field. वेरी So गुड, that's the ठीक है। purpose I joined here. Yeah. अब स्किल कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, एंड नंबर ऑफ गोल्स, राइट? Yes. अब स्किल लिख देती हूँ। Yes, yes, and this would be also beneficial in my I think means my parents' business because they are having their own business. So if I can help them out with this course, that would be किस great. यस,
क्या बिजनेस है उनका? Yeah, they are into tourism, so they have their Oh, homestay. Yes, right now there is a golden period for the tourism, right? yes, true. पार्थ। Thank you. चलिए तेजस इंट्रोड्यूस कीजिए एंड देन पार्थ। तेजस जल्दी से इंट्रोड्यूस कीजिए प्लीज। Hello, ma'am. हेलो। Hello, hello everyone. My name is Tejas. I am from Ahmednagar. I हाँ, joined digital marketing classes to gain practical skills to online marketing and stay ओके। updated in today's digital marketing world. एंड ग्रेजुएशन किस में है अभी आपका? Post graduation, ma'am, MBA ओके, किस में एमबीए स्पेसिफिकली? marketing. ओके ठीक है। मार्केटिंग मतलब लिखना जरूरी नहीं, ठीक है। पार्थ इंट्रोड्यूस कीजिए। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, I am pursuing MBA now, marketing, ओके। and my purpose to do digital marketing is upgrade the CV. सॉरी, व्हाट इज द पर्पस? Upgrade the CV, ma'am. ओह Upskilling ओके, CV. अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। Thanक you, ma'am. वेलकम तेजस, सुजीत, रोहित, प्रिया। ओके, आई थिंक तो हो गया। कोई रह गया है क्या प्लीज इंट्रोडक्शन का? एनीवन? सिर्फ आई थिंक अनुजा का माइक अनम्यूट नहीं हुआ था। I think Hello, am I भाग्यश्री। audible? Am I audible? कौन? I'm Rituja. I'm also joining this course, but I think my name is not entered. प्लीज ठीक है, नॉट एन इशू। आप अपना नाम बताइए फिर से इंट्रोड्यूस Hello, कीजिए अपना। hello everyone. I am Rituja Sinha from Kolkata. I have done my BTech in Applied Electronics and Instrumentation, and I'm taking preparations for the UPSC exam. So this year ओके is almost my last attempt. So I'm doing this course if things don't work out according to my plan in that exam, so I could opt for some alternative career. ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। आप अपना प्लीज ना स्पेलिंग के साथ, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए आप अपना चार्ट पे नाम डाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एडमिन Okay, आपने लिखा हुआ है, तो okay, एटलीस्ट एक रीनेम कर लीजिए तो मुझे एक आइडिया आ जाएगी कौन okay, कौन ज्वाइन कर रहा है क्लास। ओके। okay. भाग्यश्री आई थिंक रहेगी ये। भाग्यश्री, हमें ऑडिबल? भाग्यश्री जल्दी से। ठीक है। अनुजा। Hello. हाँ, हाय। Hi. Good evening, ma'am. गुड Myself, इवनिंग। Bhargavasri. हाँ बोलिए। यस। I have done my MCA ओके। and joined this course for upskilling only. अब स्किल ही करना है, ओके, वेरी गुड। Yes, yes. And to भाग्यश्री। support my brother's business. ओके, टू सपोर्ट योर, किसका बिजनेस है? It's digital marketing business. एजेंसी। Yes, yes. ठीक है, ठीक है। अह, ठीक है। और कोई रह गया है कि प्लीज जल्दी से इंट्रोडक्शन का, एनीवन? जल्दी। Am I audible? यस यस अनुजा, यू आर ऑडिबल। Actually, I'm in the traffic and I'm going home from work. ठीक I'm है, going नॉट home एन 1 minute इशू। or something. So my background noise is not an issue, right? ठीक है, कल इंट्रोडक्शन दे दीजिए, नॉट एन इशू। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है Okay. ट्रैफिक की वजह से। ओके, कल पर मुझे याद दिलाइए, ओके, इंट्रोडक्शन का। Definitely. If I'm properly audible to you, not an issue. I can even speak right now if you यस don't यस, have an issue. देन कंटिन्यू कंटिन्यू जल्दी से। Yeah. So, hello Nikita ma'am, this is Anuja Patil, and I यस। did my BMS in marketing specialization. And currently, I'm working as a sales executive in a bedding industry, which is हम्म। an Australian industry. And yeah, my purpose for choosing this course is to update my skills in digital marketing, of course, because I did my specialization in that. And it is for the job purpose as well. My main motive is for job in digital marketing. ठीक है, ठीक है, Yeah. अंडरस्टूड अनुजा, यस, वेरी गुड। एक मिनट, मुझे एक सेव करने दीजिए। ठीक है, चलिए। सो आप लोगों ने तो अपना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, मैं भी अपना थोड़ा सा ना, मेरा कैमरे का इश्यू है तो दैट्स ऑफ ऑफ है। ठीक है, नॉट एन इश्यू। मेरा वॉइस ही बहुत काफी है आप लोगों के लिए।
ठीक है, सो मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। माय नेम इज निकिता फ्रॉम दी दिस एक मिनट, आई हैव जॉइन दिस कोर्स फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अंडरस्टूड अंडरस्टूड रिजिता। Okay, so basically I have near about 7+ years of experience in the digital marketing field. जब भी मैंने भी अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए, मैंने एसईओ स्पेशलिस्ट स्टार्ट किया था, देन अपस्किल किया खुद को, फेसबुक सीखा, गूगल एड सीखा, राइट, देन वर्क एज अ फेसबुक स्पेशलिस्ट, गूगल एड स्पेशलिस्ट, देन आफ्टर दैट डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हैव टू परफॉर्म ऑल द रोल, एसईओ भी करना पड़ेगा, फेसबुक भी, गूगल पे, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, और साथ में मैं पीआईडीएम से कनेक्टेड हूँ फॉर द ऑनलाइन ट्रेनिंग्स। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को फ्रॉम द फर्स्ट डे टू लास्ट डे मैं ही आपको एज ए ट्रेनर मिलूंगी। ओके, 2 मंथ्स का कोर्स रहेगा। 2 मंथ्स में जो भी आपको रिलेटेड टू अ टॉपिक, रिलेटेड टू अ टेक्निक का आज से मैं ही पूरा सिखाऊंगी। ओके, सो यही है, पहले मेरा तो इंट्रोडक्शन हो गया। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में करियर करना है अपना, ओके, सो बेसिकली सबसे पहले समझिए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जब मैंने इंट्रोडक्शन लिया, मोस्ट ऑफ द लोगों को अपस्किल का था, अपस्किल करना है। बहुत लोग अभी जैसे एग्जांपल 12th पास हुए फिर भी वो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है, वेरी इंप्रेसिव, राइट। बहुत लोग अपना करियर स्विच करना चाहते हैं, राइट, आप अपना करियर स्विच करना चाहते हैं। तो व्हेन यू आर स्विचिंग द करियर, अभी किसने बोला है कि मेरा 5 years का गैप है, किसी ने बहुत पहले जॉब किया था, किसी का 1 year का, 2 years का गैप है, राइट। व्हेन यू आर डूइंग द गैप और फिर उसके बाद अगर आप कोई भी करियर में स्विच कर रहे हो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट फील्ड। अगर आप कोई भी करियर करना चाहते हैं, क्योंकि करियर एक नियर अबाउट 10 to 15 years का मिनिमम डिसीजन होता है, राइट। अगर आपको उस फील्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप ब्लाइंडली डिसीजन ले सकते हैं क्या? नहीं। आप लोगों ने डेफिनेटली आज डिजिटल मार्केटिंग का पीआईडीएम का डेमो ज्वाइन किया है, तो डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं सर्च किया है, आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, राइट, एनीथिंग, मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, इंस्टा पे रील्स देखे होंगे, इंस्टा पे बहुत सारे एड्स देखे होंगे, किसी ने ऑलरेडी वर्कशॉप ज्वाइन किए होंगे, एंड नंबर ऑफ किसी ने कुछ ना कुछ एक्टिविटी की है, दैट्स वाई आज आप लोग पीआईडीएम के डेमो पे क्या हुए, ज्वाइन हुए। पर फिर भी अभी किसी को बहुत कुछ पता होगा डिजिटल मार्केटिंग को, मार्केटिंग के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होगा। ये याद रखिए, फ्रॉम द डे 1 to day 60 मेरे सारे क्लासेस बेसिक्स टू एडवांस रहेंगे। अभी किसी को थोड़ा सा पता है फिर भी उसको मैं जो बता रही हूँ वो सुनना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं पता है, राइट। सो मुझे फ्रॉम द स्क्रैच ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आज भी आप लोगों को बहुत रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेटली पता होगा, पर आज भी हमारा सेशन सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशन है, एग्जैक्टली बेसिक, ज्यादा कुछ यहाँ पे आज डीप में नहीं होने वाला है, ना कोई बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, राइट। आज का वो दिन ही नहीं है, वो कल से स्टार्ट होगा, राइट। सो आज सिर्फ मैं एग्जैक्टली बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या इंक्लूडेड है। आप लोगों ने बहुत फैंसी वर्ड होते हैं, राइट नाउ देयर आर एन नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स आर कमिंग, राइट। बहुत लोग आपको इंस्पायर कर रहे हैं, बहुत लोग आपको मिसगाइड भी हो रहे हैं आप लोग, क्योंकि एन नंबर ऑफ वीडियोस आते हैं, जितने ज्यादा वीडियोस उतना ज्यादा कंफ्यूजन डेफिनेटली इंक्रीज होता है। तो आपके मन में भी बहुत सारे डाउट्स होंगे। तो बेसिकली मैं सबसे पहले डाउट क्लियर करती हूँ कि एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग क्या है, हम लोग 2 मंथ्स में क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, हमारे सिलेबस में क्या है। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या अवेलेबल है, रिलेटेड टू दैट ही हम लोग आज डिस्कस करने वाले। कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप लोग अनम्यूट कीजिए और मुझे पूछिए, डोंट वेट कि मैम का पूरा लेक्चर खत्म हो जाए, नहीं, समझ में नहीं आ रहा है वहीं पे अनम्यूट कीजिए, क्योंकि वही आपको ज्यादा, जितना आप लोग क्लास में इंटरैक्टिव रहेंगे, जितना आप लोग मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा 2 मंथ्स के बाद आपको क्या मिलेगा, और रिजल्ट मिलेगा। जो लोग बहुत, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस, मेरी नॉट ये फर्स्ट बैच है, नियर अबाउट मेरी ये 70 बैच होगी, ओके, क्योंकि हमारे मंथ में 3 to 4 बैचेस होते रहे। तो ये नियर अबाउट हमारा क्या फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। जो लोग क्लास में फ्रॉम द डे 1 to day 60 सीरियस होते हैं, पूरा प्रैक्टिकली कंप्लीट करते हैं, वो लोगों को इतना कॉन्फिडेंस होता है आफ्टर 2 मंथ को, उनको लगता है कि नहीं, आई अच्छा काम किया है, बहुत कुछ सीखे। पर जो लोग थोड़ा सा लेजी करेंगे तो उनको डेफिनेटली वो, आप लोग थोड़ा सा अपने बिहेवियर में आपको समझ में आएगा। सो ठीक है, मैं इंस्पायर करते रहूंगी, आखिर में आपके हाथ में, राइट। तो चलो, लेक्चर हो गया, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज मीन बाय डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो मेरी एनर्जी इतनी हाई रहती है, आप अपनी एनर्जी ऐड ऑन करिए, क्लास में बहुत मजा आएगा। इंटरैक्टिव रखिए, जितना इंटरैक्टिव रखेंगे उतने सेशन से आप ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, लेके जाएंगे। ओके, ठीक है, ओपन रहिए। क्या होता है, सबसे पहले व्हाट इज मीन बाय मार्केटिंग। बहुत सारे लोगों का एमबीए मार्केटिंग हुआ है, राइट। सो बहुत सारे, जब मैं लिख रही थी, बहुत मोस्ट ऑफ द लोगों का एमबीए मार्केटिंग का ग्रेजुएशन था, किसी ने या किसी को तो भी अभी मार्केटिंग का वर्कशॉप ज्वाइन करो तो कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया होगी मार्केटिंग की। सो व्हाट इज मीन बाय मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू यू, आपको क्या लगता है जब मार्केटिंग वर्ड सुनते हो, इसमें क्या करना होगा, या एग्जैक्टली आपको क्या लगता है मार्केटिंग क्या होती है?
Anyone? What is meant by marketing according to you? मैम लोगों को जागरूक करना किसी के प्रोडक्ट के बारे में। Okay, I very think good, very good. और क्या market होता है marketing? marketing for me is actually selling the product and listing out the various qualities and reaching out to the consumers that why they should purchase that particular product. ओके, बहुत डिटेल में बताया, ठीक है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। Yeah. जो अभी ओके, सिंपल से स्टार्ट करेंगे, बहुत डीप में जाना है, 2 मंथ्स वही करना है हम लोगों को। ओके, आज सिंपल, आज कुछ ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपल सिंपल, ऊपर ऊपर से आज। ओके, कल से डिटेल में जाएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखिए, डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी हो मार्केटिंग, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में खुद वर्ड इंक्लूडेड है मार्केटिंग। तो व्हाट इज मीन बाय मार्केटिंग? Okay, marketing is the process of creating interest in potential customers and clients in your product and services, right? Marketing एक ऐसी प्रोसेस है। अगर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट है, जैसे एग्जाम्पल मान लो मैं परफ्यूम सेल कर रही हूँ, मेरी कंपनी है परफ्यूम बनाती है, राइट? अगर मुझे वो उसका सेल्स एक्सपेक्टेड है तो एटलीस्ट मुझे पहले मार्केट में ब्रांडिंग तो करनी पड़ेगी, मुझे कस्टमर्स के मन में इंटरेस्ट तो क्रिएट करना पड़ेगा, मेरे प्रोडक्ट के रिलेटेड लोगों को बताना तो पड़ेगा कि दिस टाइप ऑफ परफ्यूम इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो अवेयरनेस, इंटरेस्ट क्रिएट करना अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मार्केटिंग। मार्केटिंग एंड सेल्स आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। मार्केटिंग का मतलब होता है आपके प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कीजिए, अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए और आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड मार्केट में इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए। दैट इज सिंपल कॉल्ड एज मार्केटिंग। मार्केटिंग उससे ज्यादा कुछ नहीं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना, अवेयर करना अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड और अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड ऑडियंस के मन में, आपके यूजर्स के मन में इंटरेस्ट क्रिएट करना। दैट इज सिंपली कॉल्ड एज मार्केटिंग। मार्केटिंग का आउटकम होता है सेल्स। ओके, अगर परफ्यूम किसी को पसंद आया, उतनी ब्रांडिंग आप लोगों ने की, उतने पावरफुल वे से उसको आपने मार्केट किया, देन वो क्या करेंगे, कस्टमर्स परफ्यूम को परचेज करेंगे। तो मार्केटिंग एंड सेल्स आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। आउटकम ऑफ द मार्केटिंग क्या होता है? अल्टीमेट सेल होता है। ओके, तो अभी मार्केटिंग अभी कर रहे क्या 2025 में मार्केटिंग कर रहे क्या? नहीं। मार्केटिंग कब से है, राइट? तो मार्केटिंग जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है नियर अबाउट 16th सेंचुरी से, तब से हमारे यहाँ पे क्या है, मार्केटिंग चल रही है। तो फर्स्ट जैसे एग्जांपल ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, राइट? ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब इस तरह से बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाना, अभी भी ये अवेलेबल है। अभी एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं है क्या? नहीं, डेफिनेटली ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी एग्जिस्ट है, बट पैरेलली डिजिटल मार्केटिंग की अवधि ग्रो हो रही है। ओके गाइस, मेरा स्क्रीन विजिबल है ना सबको? स्क्रीन दिख रही है ना सबको? Yes. Yes. Yes, ma'am. ओके, मेरे वॉइस में कहीं पे भी फ्रीक आता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, बिकॉज थोड़ा सा मानसून का टाइम है, तो माइट भी अगर कोई फ्रीक आता है तो प्लीज बता दीजिए। सारे लोग Sure, प्लीज ma'am. म्यूट पे रखिए, सारे लोग प्लीज म्यूट पे रखिए। जब डाउट है तब अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज म्यूट पे रखिए, अदरवाइज इको क्रिएट होगा। ओके, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, तो इस तरह से बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाना, राइट? दैट इज द वे ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सेकेंड, इस तरह से ओके इस तरह से एक आपके एरिया का मतलब आप जिस सिटी में रहते हो वहां पे डेफिनेटली एक क्राउडेड एरिया होता है जहाँ पे आपका मार्केट होता है। वहां पे ऐसे क्राउडेड लोकेशन पे जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग आते हैं, ऐसे यहाँ पे बिलबोर्ड, ऐसे लंबे लंबे थोड़े से होर्डिंग्स लगाना, इसको हम लोग बिलबोर्ड मार्केटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स क्या होते हैं एट ए टाइम, मतलब मल्टीपल ब्रांड्स यहाँ पे क्या होते हैं, शोकेस होते हैं, तो इसको हम लोग बिलबोर्ड मार्केटिंग बोलते हैं। अभी आप भी कहीं पे भी देखते हैं, आप जिस लोकेशन पे, आप अगर क्राउडेड लोकेशन पे जाते हैं तो इस तरह से बहुत नॉर्मल चीजें हमारे डेली लाइफ में। ओके, इस तरह से पहले स्नैपडील का सेल आता था तो न्यूज़पेपर से समझ में आता था, दैट इज कॉल्ड एज न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज आल्सो द वे ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, राइट? ट्रेडिशनल मार्केटिंग, तो इस तरह से न्यूज़पेपर पे अपने प्रोडक्ट को, अभी बहुत सारे लोगों ने बताया कि वो लोगों का कुछ यूपीएससी एमपीएससी वाला बैकग्राउंड है, बहुत लोगों ने देखा होगा कि अभी एग्जाम्पल आप लोग जो भी जिस भी स्टेट में रहते हो, लोकल न्यूज़पेपर होता है, तो लोकल न्यूज़पेपर पे जनरली जब एड होती है, एड के बाद रिजल्ट्स आता है, राइट? तो रिजल्ट्स के यहाँ पे क्या होता है, फ्रंट पेज पे एडवर्टाइज आती है। जो क्लासेस लेते हैं एमपीएससी यूपीएससी वाले, उनके यहाँ पे क्या होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, राइट? तो प्रिंट मीडिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंट मीडिया। तो अगर आपको अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज शोकेस करना है तो न्यूज़पेपर थ्रू भी क्या होता है, प्रमोशन होता है। ओके, अभी भी होता है, ऐसा नहीं है। ओके,
इसको भी प्रिंट मीडिया बोलते हैं। पैम्पलेट्स थ्रू मार्केटिंग करना, अभी भी अगर एग्जांपल आपके न्यूज़पेपर में अभी भी पैम्पलेट्स आते हैं, जैसे एग्जांपल आपके नियर अबाउट इसमें होटल ओपन हो रहा है, रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, तो अभी भी यहाँ पे क्या आते हैं, पैम्पलेट्स आते हैं। कोई क्लोथिंग स्टोर ओपन हो रहा है, कोई स्टेशनरी शॉप ओपन हो रहा है, तो आपके यहाँ पे अभी भी क्या आते हैं, पैम्पलेट्स आते हैं। तो पैम्पलेट्स भी ऑल्सो इज द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ओके, तो अभी तक हम लोग ये मार्केटिंग कर ही रहे हैं, राइट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग अभी भी एग्जिस्ट है, बट नाउ इन 2025 आप इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं। आप लोग बताइए, अभी मोस्ट ऑफ द लोगों का ग्रेजुएशन हो गया है, तो मतलब आप लोग थोड़े से 90, 95, 97 वाले जनरली जनरेशन हो गया, ओके एग्जैक्टली, या 2000 वाले होंगे। ओके, तो जब आप लोगों ने 10, 12th के क्लास लगाए थे, एक्सेप्ट अभी जो 12th में कौन है, एक्सेप्ट रोहित है ना, राइट। 12th में रोहित ही है ना। पास कर चुका हूँ। हाँ, ओके, सो एग्जाम्पल वो 12th में, ये जनरेशन छोड़ के एग्जैक्टली जब हम लोगों ने 12th किया था, तो हम लोगों को जब कोचिंग क्लासेस के बारे में पता चलता था, हमको कैसे पता चलता था, बिलबोर्ड्स, होर्डिंग्स, राइट। 99.99 उस पर्सन को मिला और उसका होर्डिंग्स लग जाता था कॉन्ग्रेचुलेशंस का, तो वो क्या है, मार्केटिंग है, राइट। अगर एग्जाम्पल XYZ टीचर के यहाँ पे 99% आया, होर्डिंग्स देखा, हम भी वहां पे ज्वाइन किए, या आपके सीनियर्स ने आपको वहां पे रेफर किया कि ये ट्यूशन क्लासेस अच्छे लेते हैं 11th 12th में, आप ज्वाइन कीजिए, राइट। एवरीवन, हम जब 11th 12th में थे, हमको कोई भी क्लासेस के बारे में ऐसे ही पता चलता था, पैम्पलेट थ्रू या रेफरेंस थ्रू अपने सीनियर्स के, या ऐसे बिलबोर्ड्स होर्डिंग्स के थ्रू। बट इन 2025 अगर आज आप PIDM के भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हो, आपको PIDM के बारे में कैसे पता चला, एनीवन, PIDM के बारे में कैसे पता चला? Online. By searching in Google. Online searching in Google. Instagram ads या something. गूगल पे टाइप किया होगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे, डिजिटल Offline Digital Marketing Institute. यस, ऑफलाइन, ऑनलाइन, बहुत कुछ ऐसे कीवर्ड्स डाले होंगे, ओके। तो वहां पे Yes. अगर आपने यहाँ पे डाला, तो आपको ऐसे कुछ एडवर्टाइजमेंट आई होगी, आपने इस पे क्लिक किया, राइट। क्लिक करने के बाद हमारी वेबसाइट ओपन हुई, राइट। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर फिल आउट किया होगा, सेंड किया होगा फ्रॉम आवर टीम, आपको कॉल आया होगा रिलेटेड टू हमारे कोर्स, पिच किया होगा, ओके। अगर आपको उनमें थोड़ा इंटरेस्ट है, दैट्स व्हाई आप PIDM के कोर्स में क्या हुए, मतलब एटलीस्ट डेमो में एनरोल्ड हुए, राइट। दैट इज कॉल्ड एज योर डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज द स्विच इन 2025 राइट नाउ। अगर आपको एक शूज भी परचेस करना है तो ऑनलाइन में परचेस करते हैं, ओके। एक शर्ट भी परचेस करना है ऑनलाइन में परचेस करते हैं। रेस्टोरेंट में जाना है, रेस्टोरेंट नियर में, डेंटिस्ट के पास जाना है, डेंटिस्ट इन स्पेसिफिक लोकेशन डालेंगे, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, ओके, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। जो भी अभी आपको डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड भी कहाँ से पता चला, ऑनलाइन। एक तो आपको गूगल से पता चला होगा, या हमारे एड फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रन होते हैं, तो वहां से पता चला होगा, कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको पता चला होगा, ओके। तो मार्केटिंग विद द हेल्प ऑफ, सुनिए, मार्केटिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इंटरनेट, सिंपली कॉल्ड एज डिजिटल मार्केटिंग। बहुत फैंसी नहीं है, मार्केटिंग कर रहे हो बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इंटरनेट, सिंपली कॉल्ड एज डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग वही है, नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी काम क्या होता है, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, अवेयर करना, इंटरेस्ट क्रिएट करना। डिजिटल में भी वही करना है। चैनल्स चेंज हुए, अ वे ऑफ मार्केटिंग चेंज हुई है, प्लेटफॉर्म चेंज हुए। प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर की जगह किसने ले लिया, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स ने ले लिया, ओके। सो यहाँ पे मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग ही करनी है, प्रोडक्ट को सेल ही करना है, बट कहाँ पे सेल करना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करना है, ओके। एंड दैट इज सिंपली कॉल्ड एज डिजिटल मार्केटिंग, ओके। वन बाय वन सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे, ओके। बट अभी आप लोगों ने बताया, अभी जैसे हम लोग ये फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स देखते हैं, मैं नॉर्मली आपको अपना फेसबुक अकाउंट दिखाती हूँ, राइट। अभी नॉर्मली मैंने अपना फेसबुक अकाउंट लोड किया, ओके। जैसे मैंने अकाउंट लोड किया, यहाँ पे देखिए मुझे एड्स दिख रहे हैं, स्पॉन्सर्ड समथिंग, एड, दिस इज कॉल्ड एज फेसबुक एड। सिमिलर टू दैट इंस्टाग्राम पे जाएंगे, यहाँ पे से जहां पे स्पॉन्सर्ड लिख के आ रहा है, दैट इज द एडवर्टाइजमेंट, ओके। तो यहाँ से आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में क्या हो रहा है, पता चल रहा है। तो फेसबुक के बारे में पता चल रहा है, इंस्टाग्राम के बारे में पता चल, इंस्टाग्राम एड्स तो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के रिलेटेड क्या हो रहा है, पता चल रहा है, ओके। बट व्हाई डिजिटल मार्केटिंग, राइट? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग? सच में ये डिजिटल मार्केटिंग एक बूमिंग है या नॉर्मली इसकी थोड़ी हाइप की है, आपको डेफिनेटली आगे वाले स्लाइड में समझ में आएगा। बट नाउ 2025 में हम लोग ऐसे फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स ऐसे दिख रहे, राइट? व्हाई डिजिटल मार्केटिंग? व्हाई डिजिटल मार्केटिंग? फर्स्ट इज द रीच,
second is the cost, third is the potential audience. There are three main benefits due to that digital marketing क्या हो रही है, डे बाय डे ग्रो हो रही है. तो फर्स्ट रीजन, सेकंड और थर्ड, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, पर इसको मैंने सिर्फ तीन मेन कैटेगरी में क्या किया है, डिवाइड किया, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर पोटेंशियल, मतलब फ्यूचर क्या हो सकता है, इसमें कितना पोटेंशियल है, आपको समझ में आता है. इफ यू आर चेंजिंग योर करियर, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाई डिजिटल मार्केटिंग, राइट. सो रीच, सबसे पहले हुडसुट नाम की एक कंपनी है जिन्होंने ये सर्वे किया है. अभी इसका नेक्स्ट सर्वे आने वाला है, पर अभी ये ओल्ड वाला सर्वे ही है, पर ठीक है. इसमें टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है, 7.75 बिलियन. यूनिक मोबाइल फोन यूजर्स है 5.19, इंटरनेट यूजर्स है 4.54 बिलियन, नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है. एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स 3.80. अगर दोनों का नंबर कंपैरिजन करेंगे, टोटल पॉपुलेशन है 7.75 बिलियन वर्ल्ड की, and active social media है 3.80. This is the half of the number. Okay, 7.7 की half of the number. Right now this number changed to 4.8 तक. Okay, बहुत नंबर बढ़ गया है. Okay, पर फिर भी ये लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से नियर अबाउट 5 बिलियन ऑडियंसेस अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया. अगर आपकी ऑडियंस सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, तो एज अगर बिजनेस पर्सन हो, तो आपको अपना अगर प्रोडक्ट सेल करना है, आपको अपने अगर सर्विसेज सेल करने हैं, तो आपको भी कहाँ पे जाना पड़ेगा, ऑनलाइन जाना पड़ेगा. आप में से अभी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास तो बिजनेस है. डेफिनेटली आप जॉब के लिए जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग में, किसी ना किसी का प्रोडक्ट ही आपको सेल करना पड़ेगा ना, तो वो उस रेफरेंस में कंसिडर कीजिए. सो अगर आपकी ऑडियंस ऑनलाइन में प्रेजेंट है, तो एज ए डिजिटल मार्केटर आपको बिजनेस भी कहाँ पे प्रमोट करना पड़ेगा, ऑनलाइन. आप में से अभी जितने भी 20 जो लोग ज्वाइन हुए क्लास में, डेली रूटीन सबका यही होता है, अ डे स्टार्ट विथ योर मोबाइल. जैसे अलार्म बजता है, डे स्टार्ट होता है आपके मोबाइल के साथ. ओके, देखेंगे अभी किसी का, हर इसका प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म अलग होता है. किसी को इंस्टाग्राम अच्छा लगता है, किसी को यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप, तीनों चारों प्लेटफॉर्म जो पॉपुलर है वो देखते हैं. उसके बाद योर मॉर्निंग रूटीन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, राइट. फिर आपका जो भी कॉलेज होगा तो कॉलेज जाएंगे, जॉब होगा कि जॉब, या घर के काम हो गए घर, कुछ ना कुछ आपका डेली रूटीन होता है. बीच में जैसे टाइम मिलेगा फिर से मोबाइल ऑन होगा. ओके, फिर से अ डे एंड विथ योर मोबाइल. अभी आप सोने जा रहे हो, फिर से आप मोबाइल चेक करोगे, सारे प्लेटफॉर्म चेक करोगे. 95% लोगों का यही डेली रूटीन है. 5% बहुत जो सेंट है उनकी बात छोड़ दो, पर 95 है, मेरा खुद का भी यही रूटीन है, इंक्लूडिंग मी. सबका डेली रूटीन, डे स्टार्ट विथ योर मोबाइल, डे एंड विथ मोबाइल. 5% को छोड़ दीजिए. 95% ऑडियंस का राइट नाउ इन 2025 यही बिहेवियर है, राइट. अगर आपकी ऑडियंस ज्यादातर टाइम ऑनलाइन में स्पेंड कर रही है, तो एज अ बिजनेस पर्पस, अगर बिजनेस पर्सन आपको कोई प्रोडक्ट प्रमोट करना है, आपको कोई सर्विसेज प्रमोट करना है, आपको भी कहाँ पे जाना पड़ेगा, ऑनलाइन में जाना पड़ेगा. बिकॉज आपकी ऑडियंस ज्यादातर अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड कर रही है, सोशल मीडिया या अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे. तो एज अ आपको भी वहां पे क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को शोकेस करना पड़ेगा. एंड दैट इज द वन ऑफ द रीजन दैट इज रिच. इतनी ह्यूज ऑडियंस आपको ऑनलाइन में मिल रही है, डे बाय डे ये इंक्रीज हो रहा है. अभी ये डे क्या खत्म होने वाला है क्या, ये सोशल मीडिया अभी बंद होने वाला है क्या, नहीं, डे बाय डे ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. एंड दैट इज द वन ऑफ द कोर बेनिफिट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग. एवरीवन अंडरस्टूड रिच? गाइस, एवरीवन यस मैम. अंडरस्टूड? Yes, yes, ma'am. थोड़ा सा Yes, ma'am. इंटरैक्टिव रहिए, राइट. थोड़ा सा जितना इंटरैक्टिव रहेगा आपके लिए Yes. बेटर रहेगा. यस. सेकंड है Yes, ma'am. कॉस्ट. सेकंड है कॉस्ट. ओके, कॉस्ट का मतलब क्या है. नॉर्मली अगर आप कोई भी मार्केटिंग करते हो, तो जैसे बिलबोर्ड करना, होर्डिंग्स लगाना, न्यूज़पेपर पे ऐड देना, पैम्पलेट देना, कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. सिमिलर टू दैट डिजिटल मार्केटिंग में भी कॉस्ट इन्वॉल्व है, पर एज कम्पेयर टू भी बिलबोर्ड्स में तो लैक्स ऑफ रुपीज स्पेंड करना पड़ता है. न्यूज़पेपर पे भी ऐड अगर देनी है तो लैक्स ऑफ रुपीज स्पेंड होते हैं. ओके, अभी मैं ये नहीं बोलूंगी कि डिजिटल मार्केटिंग फ्री में हो जाएगी. यहाँ पे भी बजट रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज इफ यू वांट टू रन द एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे भी स्पेंड करना पड़ता है, पर यहाँ पे आप इफेक्टिवली एड रन कर सकते हो. ओके, एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल यहाँ पे कॉस्ट कम है. आप अपनी एड 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो, 500 से स्टार्ट कर सकते हो. एंड दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग. 500 में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 5 लाख का सेल आएगा, नहीं, बट yes, you can start your marketing game with 500. Okay, so that's open the door for the small scale mid scale companies, right. इंडिया का बैकबोन है स्मॉल स्केल मिड स्केल. डेफिनेटली एमएनसी है, पर एमएनसी बहुत कम है एज कंपेयर टू मिड स्केल.
जनरली अगर बोला जाता है कि इंडिया का जो भी इकोनॉमी है उसका बैकबोन क्या है, एमएसएमई, राइट, मीडियम स्केल कंपनी जो भी होते हैं, ओके, स्मॉल एंड मिड स्केल कंपनी। तो अगर ये स्मॉल स्केल मिड स्केल कितने कंपनीज है, हजारों कंपनी है। एवरी कंपनी अगर उनको ऑनलाइन में जाना है तो एवरीवन नीड द डिजिटल मार्केटिंग, राइट। एवरीवन वांट्स टू गो ऑनलाइन, नॉर्मल बेसिक बिजनेस भी कर रहे हो उसको भी अपना ऑनलाइन प्रेजेंस दिखाना है। इतने स्मॉल स्केल मिड स्केल कंपनीज इंडिया में, अगर उनको ऑनलाइन में जाना है तो उनको भी किसकी रिक्वायरमेंट होगी, डिजिटल मार्केटर की रिक्वायरमेंट होगी। और ये स्मॉल स्केल मिड स्केल कंपनीज क्यों ऑनलाइन में आना चाहती है, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, थोड़ा सा कम भी पैसा है, मिनिमम अमाउंट है, सो यू कैन स्टार्ट द एडवर्टाइजिंग गेम विद दिस मिनिमम अमाउंट, ओके ओके, एंड दैट इज द सेकंड बेनिफिट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। एंड थर्ड एंड वन ऑफ द important benefits, that is potential audience। अब ये पोटेंशियल ऑडियंस क्या है, आज उतने डिटेल में नहीं समझ में आएगा, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करती हूँ, पर समझ में भी नहीं आएगा तो डोंट वरी, पूरे सेशन में हमको सीखना ही है। पोटेंशियल ऑडियंस का मतलब है, थोड़े से मैं आपको सिनारियो देती हूँ, आप मुझे हेल्प कीजिए। एग्जाम्पल, मान लो मुझे अपना कैफे ओपन करना है, ओके, मुझे अपना एक कैफे ओपन करना है पुणे। पुणे, एवरीवन नो, पुणे एक सिटी है, राइट, एवरीवन नो। Yes. पुणे में स्पेसिफिकली मान लो मुझे विमान नगर है, ओके, विमान नगर एक एरिया है पुणे में, तो मुझे वहां पे कैफे ओपन करना है और मुझे अपने कैफे का प्रमोशन करना है। तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मतलब यहाँ पे मैं किस लोकेशन को टारगेट कर सकती हूँ, एनीवन? अगर आपको एग्जांपल एज ए डिजिटल मार्केटर फ्यूचर में है, आपको किसी कंपनी ने बोला है कि ये मेरा कैफे है विमान नगर में है और इसको प्रमोट करना है, मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे कैफे के बारे में पता चले, सो व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी? पहले आपकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया तो डेफिनेटली, पर आप किस लोकेशन लोकेशन, पे सबसे पहले प्रेफर करेंगे? पुणे लोकेशन। फेसबुक, Viman इंस्टाग्राम। Nagar, Pune location. Maybe Because nearby young colleges, people mostly institute, go to or cafes, airport. so I will target the place where young people mostly they hang around, like malls and and obviously social media. ओके, सोशल मीडिया थ्रू ही करना है हमको, राइट, अभी ठीक है। अभी देखिए, टारगेटिंग ऑडियंस डिफरेंट डिफरेंट, अभी ज्यादा डीप में नहीं बताने वाली, नॉर्मल क्योंकि उतना ही आपको आज समझ में आएगा, सो उतना ही बता रही हूँ। ओके, टारगेटिंग ऑडियंस, लोकेशन। सो अभी जैसे एग्जांपल, आप फेसबुक ऐड रन करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम ऐड रन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे, ये एड मैनेजर होता है, राइट, डोंट वरी, ये एड मैनेजर कैसे ओपन हुआ, ये कैसे करना है, सब कुछ आएगा। ओके, ये सिर्फ एड मैनेजर है। यहाँ पे अगर मैं कोई भी एड प्रमोशन के लिए रन करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे नॉर्मल होता है, ऑडियंस टारगेट करना पड़ता है कि आप अपनी ऐड किस लोगों को या किस ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, डोंट वरी, ये सब कुछ आएगा, पर अभी के लिए सिर्फ, अभी यहाँ पे देखिए लोकेशन है। तो जैसे मैंने कैफे का एग्जांपल दिया, कैफे कैसा है ना, एक नॉर्मल एक प्लेस है जहां पे आप ज्यादा दूर से नहीं आना पसंद करें। कैफे नियर अबाउट, हम लोग भी अगर कैफे में जाना 5 to 10 किलोमीटर प्रेफर करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। 15-20 किलोमीटर से जाके आप कैफे में करेंगे क्या? नहीं। तो आपको सबसे पहला प्रिफर्ड लोकेशन, अगर आपका कैफे विमान नगर में है, तो आपको सबसे पहले कहाँ पे टारगेट करना पड़ेगा? विमान नगर में। तो यहाँ पे टाइप कीजिए विमान नगर। तो आपकी एड सिर्फ विमान नगर में दिखेगी। अभी ये सारे फिल्टर्स होते हैं, वो सेट बाद में होंगे। तो विमान नगर में, अभी आपको थोड़ा सा, जब आप लोकेशन टारगेट कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा मैप भी पता होना चाहिए। तो विमान नगर में फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होगी, देन नियर बाय विमान नगर टारगेट करेंगे। ओके, तो अभी एग्जाम्पल, विमान नगर के बाजू में एग्जाम्पल खराड़ी एग्जाम्पल है, मैप पता होना चाहिए। किसी भी स्टेट, स्पेलिंग गलत हुई, लोकेशन फाइंड आउट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से, तो अभी आपकी एड ना सिर्फ इसी लोकेशन पे दिखेंगी। ओके, तो पहले आपका जहां पे आपका लोकल बिजनेस है, पहले वहां पे प्रमोट कीजिए, देन आप उसके नियर बाय एरियाज को टारगेट कीजिए। पुणे को सोच समझ के टारगेट कीजिए, बिकॉज 25-30 किलोमीटर से कोई कॉफी पीने नहीं आएगा जब तक वो कोई एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी थीम्ड कैफे नहीं है, तब तक नहीं आएगा। अगर नॉर्मल आपका ऑर्डिनरी कैफे शॉप है, तो आपको ज्यादा रेडियस तक नहीं जाना है, अपने नियर बाय एरियाज को टारगेट करना है। तो ये होता है लोकेशन ऑप्शन, जो आपको नॉर्मल ट्रेडिशनल में नहीं मिलते। तो ये फिल्टर आपको कहाँ पे मिलते हैं? ऑनलाइन में मिलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल, मुझे क्लोथिंग ब्रांड है मेरा,
मान लो मुझे ना ऑनलाइन में प्रमोट करना है क्लोथिंग ब्रांड, तो जैसे एग्जांपल अभी शर्ट प्रमोट करने है मुझे। ओके, मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड है जो हम लोग स्पेसिफिकली शर्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पे मेरा प्रिफर्ड ऑप्शन क्या होगा जेंडर्स में? ओनली मेल। मैं फीमेल को नहीं दिखाऊंगी ऐड, क्योंकि हु इज द डिसीजन मेकर फॉर द शर्ट? मेन। आप में से कुछ बोल सकता है कि यस डेफिनेटली कोई गिफ्टिंग के लिए भी ले सकता है, डेफिनेटली, पर वो कितने हो गए? 2-4 लोग। 2-4 लोगों के लिए ऐड रन करने का नहीं, जनरलाइज लोगों पे। तो ज्यादातर अगर मुझे शर्ट सेल करना है तो हु इज द डिसीजन मेकर? मेन। तो आपको मेन को टारगेट करना है। एग्जाम्पल, मेरा कोई कॉस्मेटिक ब्रांड है, सो अगर मैं कॉस्मेटिक ब्रांड प्रमोट करना चाहती हूँ तो मैं किसको टारगेट करूंगी? वुमन को। तो यहाँ पे आप जेंडर वाइज टारगेट कर सकते हैं। अगर अभी डिजिटल मार्केटिंग है, मैं ऑल को टारगेट करूंगी, राइट, मेन एंड वुमेन। तो इस तरह के फिल्टर आपको यहाँ पे क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। सेकंड, एज रेंज भी है, राइट। अभी जैसे एग्जांपल मुझे ना 2 BHK फ्लैट सेल करने हैं। मेरी एक कंपनी है जो रियल एस्टेट में वर्क करती है और मुझे उनके फ्लैट सेल करके देने हैं। तो 2 BHK फ्लैट सेल करने हैं। तो जनरली अगर मैं फ्लैट सेल करना चाहती हूँ तो मैं 18-20 वाले लोगों को सेल करूंगी क्या? नहीं, बिकॉज नॉर्मली हमारा ग्रेजुएशन ही 22 तक होता है। 22 के बाद थोड़े से आप लोग कोर्सेज करेंगे, किसी को थोड़ा सा इधर उधर है अब स्किल, तो नॉर्मली 25 तक एक अच्छा खासा जॉब लग जाता है। उसके बाद थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए, क्योंकि 25 तो इनिशियल है ना, पर 27, 28, 29 तक भी निकल जाता है, राइट, एक अच्छा खासा जॉब मिलने के लिए। क्योंकि अगर 2 BHK फ्लैट अगर आपको लेना है तो लोन एलिजिबल भी होना चाहिए, राइट। तो नॉर्मली अबाउट 28 हम लोग क्या कर सकते हैं? टारगेट कर सकते हैं। तो आपको कोई अगर ऐसे प्रोडक्ट सेल करने जो एज बेस्ड है, एज के हिसाब से, तो आप यहाँ पे एज का भी फिल्टर लगा सकते हैं। ओके, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, वो अपकमिंग लेक्चर्स में आएगा। अभी तो मैंने सिर्फ ऊपर से बताया, इसमें एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है, ओके, जो आपको क्लासेस में समझ में आएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल 18 से 28 तक कर सकती हूँ। ओके, 28 के अबाव, जो 28 से नीचे है उनको मेरी ऐड मत दिखा। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से अपने बजट को मेंटेन करते हो। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है वो है एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग। ये बहुत बड़ा फिल्टर है जो ऑनलाइन में आपको अवेलेबल होता है, बट ये अभी नहीं, क्योंकि ये डिटेल में जाना पड़ेगा। ओके, तो वो डिटेल में ही आपको समझ में आएगा जब क्लास स्टार्ट होगा। तो ये तो सिर्फ बेसिक बेसिक ऑप्शन जो मैंने, इसमें भी बहुत कुछ होते हैं फिल्टर्स, तो अभी तो वो सिर्फ ओपनिंग है ये तो। ओके, और एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग इज द हार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। ये है ऑनलाइन का हार्ट। ओके, और यहाँ पे आप लोगों के पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपको समझ में आएंगे, और वो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, सो द पोटेंशियल ऑडियंस, सो दैट इज द थर्ड बेनिफिट कि आप अपने अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोकेशन वाइज, एज वाइज, जेंडर वाइज, लैंग्वेज वाइज, इंटरेस्ट वाइज क्या कर सकते हैं? टारगेट कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज बूमिंग डे बाय डे। राइट नाउ एआई भी ऐड हो चुका है, एआई ने भी बहुत गेम चेंज कर दिया है, राइट। हाँ बोलिए, किसी ने कुछ बोला है क्या? Yes. Everyone understood why digital marketing? There are 3 reasons: reach, cost and potential audience. Everyone understood? Yes. यस मैम। Yes, ma'am. Yes. ओके, Yes, अभी ma'am. मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी कि एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले हैं 2 मंथ्स में। ओके, तो वो एक बार मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि नॉर्मली अभी तो ये तो मैंने नॉर्मल एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, हम लोग 2 मंथ्स में क्या क्या कवर अप करने वाले, जो आपका सेशन कल से स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग कल कैनवा सीखेंगे। अभी कैनवा क्या होता है ना, ग्राफिक डिजाइनिंग। डेफिनेटली हम लोगों को ग्राफिक डिजाइनर नहीं बनना है, वी डोंट वांट कि हम लोग ग्राफिक डिजाइनर बने, पर अगर आपको ऑनलाइन में डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो यू नीड, मतलब आपको ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, एटलीस्ट ग्राफिक्स का नॉलेज तो भी रिक्वायर्ड है। तो हम लोगों को बहुत कुछ नहीं, पर एटलीस्ट बेसिक तो भी डिजाइन करते आना ही चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसे एड्स बनाने हैं फेसबुक पे, ओके, वीडियो ऐड बनानी है, इमेज ऐड बनानी है। ओके, तो आपको यहाँ पे डिजाइन तो करते आना चाहिए। ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए एड्स बनाई हुई है, राइट। तो आपको ये एड्स ऐसे बनाते, अभी ये देखिए गूगल की एड रन हो रही है, तो ऐसे क्रिएटिव डिजाइन करते आना चाहिए, वो हम लोग सीखेंगे कैनवा पे। इमेजेस कैसे बनाना है, सिंपल वीडियोस कैसे बनाना है, वॉइस ओवर वाले वीडियोस कैसे बनाना है, नॉर्मल रील्स कैसे बनाना है, वो सब कुछ आप लोगों के कैनवा के सेशन में कवर अप होगा। अगेन बेसिक टू एडवांस। ओके, तो फर्स्ट ये लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग सोशल मीडिया स्टार्ट करेंगे। सोशल मीडिया में हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये 3 प्लेटफॉर्म को कवर अप करते।
फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। फेसबुक में ऑर्गेनिकली अपनी ऑडियंस को कैसे ग्रो करना है एंड फेसबुक एड कैसे रन करनी है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया फेसबुक पे, दीज आर द एड्स, ये एड्स है, क्योंकि जिसके सामने स्पॉन्सर्ड लिख के आता है वो एड है, ये एड है। अग्रेसिवली मार्केटिंग करना चाहते हो तो दिस इज कॉल्ड एज एड। तो फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, लिंक्डइन एड, हर प्लेटफॉर्म पे एड्स रन होती है। फेसबुक पे भी रन होती है, इंस्टाग्राम पे भी रन होती है, लिंक्डइन पे। ओके, हर प्लेटफॉर्म की अलग अलग ऑडियंस है, उसके हिसाब से आप उनको टारगेट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले कैनवा, उसके बाद सोशल मीडिया का मॉड्यूल स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग आपको ऑर्गेनिकली भी पेजेस कैसे क्रिएट करना है, राइट, अपने फॉलोअर्स ऑर्गेनिकली कैसे ग्रो करना है, प्लस फेसबुक एड। उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन एड्स, तो सारा एड्स का, दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग बोला जाता है इसको। ओके, उसके बाद सोशल मीडिया कैलेंडर एंड सोशल मीडिया ऑटोमेशन। ओके, तो आपको एक ऑर्गेनिकली आप अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, लिंक्डइन के पेज फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं, फेसबुक पे बढ़ाना चाहते हैं अपनी ब्रांडिंग ऑर्गेनिकली विदाउट रनिंग द एड्स, तो उसके लिए आपको कैलेंडर्स बनाने पड़ते हैं, शेड्यूलिंग करना पड़ता है, जिसको हम लोग सोशल मीडिया ऑटोमेशन और सोशल मीडिया कैलेंडर बोलते हैं। तो वो वाला पार्ट आपका होगा। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग लेंगे। ओके, ईमेल मार्केटिंग मतलब सिंपली बल्क में लोगों को अपने ईमेल सेंड करना और वहां पे प्रमोशन करना, वो हम लोग ईमेल मार्केटिंग में सीखेंगे। उसके बाद आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मॉड्यूल स्टार्ट होगा, दैट इज गूगल एड। गूगल एड को सर्च इंजन मार्केटिंग भी कहा जाता है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन पे जो मार्केटिंग कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्च इंजन मार्केटिंग। गूगल एड, इसको गूगल एडवर्ड्स भी बोला जाता है, पीपीसी भी बोला जाता है। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। ओके, सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल एड्स, पीपीसी, राइट, देयर आर डिफरेंट। तो उसमें हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड रन करेंगे। गूगल एड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट 6 to 7 एड, मतलब उसमें एक गूगल एड में ही देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एड्स। तो सबसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एड है जो है सर्च एड। जैसे गूगल पे आपने टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे, राइट, और यहाँ पे देखो आपको ऐसे स्पॉन्सर्ड एड दिख रही है। ओके, सो ये एड कैसे डिजाइन करनी है, बिडिंग स्ट्रेटेजीज क्या होते हैं, सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द कन्वर्टिंग एड, वन ऑफ द पावरफुल एड जो गूगल की है। गूगल की वन ऑफ द कन्वर्टिंग एंड पावरफुल एड है सर्च एड, जो हम लोग फर्स्ट एड सीखेंगे गूगल में। सेकेंड एड, आप लोगों ने नॉर्मल, अभी जैसे एग्जांपल मुझे करंट अफेयर्स रीड करने का अच्छा लगता है, सो मैं एग्जांपल जागरण जोश पे गई, या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ऑनलाइन में, बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आई डोंट नो आप में से कितने लोग पढ़ते हैं, पर न्यूज़पेपर भी पढ़ने का बहुत लोगों को शौक होता है, राइट। तो वो है, जागरण पे करंट अफेयर आता है, वो पढ़ने का इंटरेस्ट है, राइट। सेकेंड, बहुत सारे लोग बहुत सारे वेबसाइट सर्फ करते हैं आप लोग, राइट, नॉर्मली जीके के रिलेटेड है, करंट के रिलेटेड है, नॉर्मल शॉपिंग के रिलेटेड है, राइट, एजुकेशनल है, बहुत सारे वेबसाइट हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, तो वहां पे ना आपको ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं। अभी जैसे देखिए यहाँ पे एड दिख रही है। ओके, और कौन से ऐड दिख रहे हैं? ये भी एक ऐड है, लोड नहीं हो रहे पर एड सही। ये भी है ग्रो योर बिजनेस विथ वीडियो एड्स, ये भी एक ऐड है। ओके, ये भी देखिए एडवर्टाइजमेंट लोड नहीं हुआ, पर ये भी ऐड है। नॉर्मली आप अगर कोई एप्लीकेशन, जैसे नॉर्मली अभी हम लोग ट्रू कॉलर भी यूज करते हैं, उसमें भी कोई ना कोई ऐड आ जाती है। कोई गेमिंग एप्लीकेशन, गेम खेलते होंगे कभी, यूज किया होगा, या कोई एडिटिंग ऐप यूज करते, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करते, समटाइम्स वहाँ पे ऐड आ जाते हैं। तो वो ऐड मतलब गूगल का सेकेंड टाइप ऑफ ऐड है, दैट इज डिस्प्ले ऐड। अभी यहाँ पे भी देखिए ये भी एक ऐड लोड हो रही है। ओके, सो ये भी आपकी गूगल ऐड है। तो आप अगर थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाते हैं, नॉर्मल वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे आपको एड्स दिखता है, एप्लीकेशन ऐप ओपन कर रहे हैं, वहां पे एड्स दिख रहे हैं, तो दैट इज गूगल की सेकंड टाइप ऑफ ऐड, दैट इज डिस्प्ले ऐड। ओके, उसके बाद यूट्यूब में सबने एड्स देखिए, यूट्यूब का वीडियो प्ले होता है, आफ्टर 5 सेकेंड आप उसको स्किप कर सकते हो। तो यूट्यूब कोई भी वीडियो ओपन हो जाता है, बीच बीच में ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, सबने ऑब्जर्व किया यूट्यूब एड्स, यूट्यूब पे दिखती है सबको एड्स। यस मैम। Yes. दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गूगल एड, वो भी गूगल एड का ही क्या है, पार्ट है। तो कैसे यूट्यूब पे भी एड्स रन की जाती है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इसके बाद ऐप प्रमोशन कैंपेन है, गूगल ने नया कैंपेन लॉन्च किया, दैट इज परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, शॉपिंग एड, डिफरेंट डिफरेंट 7 to 8 टाइप्स ऑफ एड जो गूगल में आप लोगों को सीखने मिलेगा। बिडिंग स्ट्रेटेजीज कैसे सेट किए जाते हैं, सब कुछ आपको गूगल एड के मॉड्यूल में कवर अप किया जाएगा। डोंट वरी फॉर द सिलेबस, आप हमारे पीआईडीएम के वेबसाइट पे जाइए, सिलेबस आपको मिल जाएगा, या आपने जिस भी कोऑर्डिनेटर से बात किया वो लोगों ने ऑलरेडी आपको सिलेबस शेयर किया होगा। ओके,
गूगल एड में इंट्रोडक्शन टू गूगल एडवर्ड्स, व्हाट इज एडवर्ड्स, हाउ एडवर्ड वर्क्स, अंडरस्टैंड गूगल नेटवर्क्स, टारगेटिंग ऑप्शन क्या होता है, कीवर्ड स्ट्रेटेजी क्या होते हैं, अकाउंट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड जैसे सर्च, डिस्प्ले, यूट्यूब, ऐप, शॉपिंग एड, कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे होती है, एडवर्टाइजिंग मैट्रिक्स को कैसे रीड करना होता है, बिडिंग स्ट्रेटेजी, बिलिंग स्ट्रेटेजी, हाउ टू राइट द किलिंग एड कॉपी, राइट, ये सब कुछ आपके गूगल एड का इंक्लूडेड है। सिमिलर टू फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे भी यही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, तो ये आपका गूगल एड का पार्ट है। उसके बाद देन आप लोगों को वेबसाइट, अभी नॉर्मली अगर आप पीआईडीएम की वेबसाइट पे भी जाते हो, दिस वेबसाइट इज डिजाइन्ड इन द वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक विदाउट कोडिंग, आपको कोड विदाउट कोड आपको वेबसाइट अगर बनानी है तो वर्डप्रेस एक ऑप्शन है आपके पास। ओके, तो आपको हम लोग वर्डप्रेस सिखाएंगे कि नॉर्मल सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी पूरी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो, राइट। तो ऐसे ओके, तो ये वेबसाइट वाला पार्ट होगा। तो सबसे पहले कैनवा, देन सोशल मीडिया, देन ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया कैलेंडर, गूगल एड, उसके बाद वेबसाइट स्टार्ट होगी। तो वेबसाइट में सब कुछ, वेबसाइट में ऐसे ये कैसे डिजाइन करना है सब कुछ। उसके बाद अगर मैं गूगल पे टाइप करूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस इन पुणे, यहाँ पे देखिए मेरी स्पॉन्सर्ड में तो मेरी एड मेरी वेबसाइट आ ही रही है। ओके, बट यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड नहीं है फिर भी मेरी वेबसाइट दिख रही है। दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप 10 में आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप 10 में आ रही है, आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप 10 में आ रही है, उसको हम लोग बोलते हैं एसईओ। या अगर आपको अपने वेबसाइट को गूगल के टॉप 10 में लाना है ऑन अ स्पेसिफिक कीवर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और देन वो वेबसाइट के बाद आपका स्टार्ट होना होगा एसईओ। एसईओ में बहुत सारे मॉड्यूल है, ऑन पेज है, ऑफ पेज है, टेक्निकल है, बहुत कुछ क्रिएट करना पड़ता है, बहुत कुछ एफर्ट्स एक्टिविटीज करने पड़ेंगे। और वो पूरा एसईओ वाले मॉड्यूल्स में क्या किया जाएगा, कवर अप। एसईओ में बहुत कुछ है, टेक्निक्स है, एल्गोरिदम्स है, ऑडिट है, मार्केटिंग प्रपोजल्स है, बहुत कुछ आपको एसईओ में करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद देन ये होने के बाद देन आप लोगों का गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल, दीज आर द फ्री टूल्स फ्रॉम द गूगल। ओके, गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल आर द टूल्स फ्रॉम द गूगल। ये ये है गूगल एनालिटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसमें आपके वेबसाइट का पूरा डेटा आप एनालाइज कर सकते हो और फ्यूचर के डिसीजन ले सकते हो। तो ट्रैकिंग के लिए यूज किए जाते हैं। सर्च कंसोल एक टेक्निकल इशू सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये दोनों टूल इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग करियर, जो आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे। ओके, इसके बाद भी ना बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे मॉड्यूल है, कंटेंट राइटिंग कैसे करना है, कंटेंट मार्केटिंग कैसे करना है, कॉपीराइट है, अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करना है, फ्रीलांसिंग, बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते रहे। तो फ्रीलांसिंग, सबसे पहले फ्रीलांसिंग क्या होता है, फ्रीलांसिंग किस किस टॉपिक में कर सकते हो, फ्रीलांसिंग के लिए प्रपोजल्स कैसे बनाने हैं, क्लाइंट कैसे फाइंड आउट करना है, वो भी एक आपका फ्रीलांसिंग का मॉड्यूल है। उसके बाद ग्रोथ हैकिंग है, और ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे टॉपिक भी क्या है इंक्लूडेड है। तो फॉर द डिटेल, तो मैंने तो एक ओवरव्यू दिया है कि क्या क्या मेन टॉपिक का ओवरव्यू दिया है, पर इसके अलावा आप pidm.com इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे डाउनलोड सिलेबस का ऑप्शन है। डाउनलोड सिलेबस पे अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर क्लिक कीजिए, डाउनलोड सिलेबस पे क्लिक कर दीजिए, आपका सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। एंड फॉर द डिटेल कि हम लोग क्या क्या सिखाने वाले हैं, वो आपको यहाँ से एक आइडिया आ जाएगी। ओके ओके, सो फॉर द डिटेल, तो मैंने तो बड़े बड़े जो भी अभी क्या होता है ना, मैंने सोशल मीडिया, अभी सोशल मीडिया में थ्री पार्ट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल है, बहुत कुछ है, सॉरी फेसबुक, इंस्टा एंड लिंक्डइन, 3 इंक्लूडेड है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे सब मॉड्यूल्स है। तो मैंने तो सिर्फ एक ओवरव्यू दिया कि ये मेन इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे कवर अप होने वाला है, पर इसके अलावा भी अफिलिएट है, फ्रीलांसिंग है, ग्रोथ हैकिंग है, राइट, और क्या ड्रॉप शिपिंग है, ई कॉमर्स वेबसाइट, बहुत सारे लोगों को ई कॉमर्स वेबसाइट भी, हाँ सॉरी वेबसाइट में मैं बात बताना भूल गई। वेबसाइट में हम लोग 3 टाइप्स ऑफ वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। एक नॉर्मल ब्लॉग वेबसाइट, ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग को कैसे अपलोड किया जाता है, नॉर्मल। ओके, एंड देन ब्लॉग वेबसाइट। ब्लॉग वेबसाइट अगर आपको बनानी है, ये अब ये जो पीआईडीएम की वेबसाइट है, ये बिजनेस वेबसाइट है जहाँ पे आपके ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस होते हैं। एंड थर्ड होती है ई कॉमर्स वेबसाइट, जहाँ पे एग्जाम्पल मैंने कहा था शर्ट, क्लोथिंग ब्रांड मुझे सेल करना है, तो शर्ट के लिए आप ऐसी वेबसाइट बनाएंगे क्या, नहीं, शर्ट वहां पे दिखेगा, देन प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा, ऐड टू कार्ट के बाद चेकआउट करना पड़ेगा, राइट। तो दैट इज द फ्लो ऑफ द ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट भी डिजाइन करना आपको सिखाया जाएगा। तो ये सब कुछ आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। एंड फॉर द डिटेल एक बार थोड़ा सा सिलेबस थ्रू गो थ्रू कीजिए। ओके, इसके बाद अगर आप लोगों ने कोर्स कंप्लीट किया, आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स,
व्हाट इज, हाँ एआई टूल्स भी एडेड है। एआई टूल्स अभी क्योंकि रिसेंट थोड़ा अपडेट हुआ है, तो रिलेटेड टू दैट डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे एआई टूल्स का भी हम लोगों को जहां जहां हेल्प ले सकते हैं हम लोग वहां पे लेंगे। ओके, तो स्कोप ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप क्या है? आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आपको किस पोजीशन पे जॉब लग सकते हैं, राइट? एज अ कैंपेन मैनेजर। कैंपेन मैनेजर का मतलब होता है फेसबुक एडवर्टाइज या गूगल एड, दोनों को भी कैंपेन मैनेजर कहा जाता है। जो एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं उनको जनरली कैंपेन मैनेजर का डेजिग्नेशन दिया जाता है। स्पेसिफिकली गूगल एड रन कर रहे हो तो पीपीसी एक्सपर्ट कहा जाता है। ओके, अगर आपको सिर्फ एसईओ में इंटरेस्ट है, ओके आपने पूरे मॉड्यूल सीखे पर आपको ना सिर्फ एसईओ में इंटरेस्ट है, बाकी कोई मॉड्यूल में इंटरेस्ट नहीं आया, तो आप एसईओ एनालिस्ट या एसईओ एग्जीक्यूटिव अपना जॉब क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है, बाकी कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो सोशल मीडिया एक्सपर्ट या सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। अभी कंटेंट राइटर थोड़ी सी एक अलग पोजीशन है, क्योंकि कंटेंट राइटर के लिए थोड़ा सा लिखने का नॉलेज होना चाहिए और आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होनी चाहिए। एवरीवन, सारे लोग कंटेंट राइटर नहीं बन सकते हैं। कंटेंट राइटिंग या राइटर एक ऐसी स्किल होती है जिसको सोचने की बहुत मतलब और लिखने का वे पता होता है। अभी नॉर्मली हम लोग नॉर्मली अब बोलेंगे नेचर को डिस्क्राइब कीजिए तो नॉर्मली कर देंगे, पर कंटेंट राइटर एक बहुत डिफरेंट वे से वर्ल्ड को देखता है और उस तरह से वो क्या करता है, लिखता है। तो एवरीवन कांट बी अ कंटेंट राइटर। थोड़ा आप लिखने में अच्छा हो, इमेजिनेशन करने में अच्छे हो, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा अच्छे होने जाए। ये सब लोग राइटर बन सकते हैं क्या? अदरवाइज सब लोग लेखक ना, हिंदी में लेखक बोलते हैं तो सारे लोग लेखक हो जाते हैं, तो एवरीवन कांट बी। पर अगर आप लिखने में थोड़ा अच्छा है, आपका इंग्लिश अच्छा है, vocab आपके पास अच्छी है, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस पोजीशन। पर ठीक है, लिखने में अच्छे होने चाहिए। ओके, तो दैट इज अ कंटेंट राइटर। ये थोड़ी एक अलग पोजीशन है, बाकी यहाँ पे सब कुछ आप दो, दैट इज द स्कोप ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग द जॉब आप इसमें जॉब कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये तो मैंने सब कुछ यहाँ पे हम लोग क्या क्या कवर अप करने वाले वो है एग्जाम्पल। ओके, एवरीवन, बिजनेस ओनर, वर्किंग प्रोफेशनल, जिसको जॉब चाहिए, हाउसवाइफ है, कॉलेज ग्रेजुएट है, एनीवन डू द डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि जो भी हमारे 2 मंथ्स का क्लास रहेगा फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस, फ्रॉम डे 1 टू डे 60, मेरे सारे क्लासेस फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस रहेंगे। जिसको ऑलरेडी थोड़ा बेसिक पता है, थोड़ा सा उसको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज मेरे क्लास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बेसिक भी नहीं पता, राइट? तो हम लोग सारे क्लासेस बेसिक्स टू एडवांस स्टार्ट करेंगे। 2 मंथ्स का कोर्स है, ऑनलाइन ही रहेगा, 7 to 9 का टाइम है। क्लासेस इज ऑन मंडे टू फ्राइडे। क्लासेस कब रहेंगे? मंडे टू फ्राइडे रहेंगे। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, सारे सेशंस प्रैक्टिकल रहेंगे। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? जैसे कल मैं स्टार्ट करूंगी कैनवा। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि कैनवा क्या होता है, कैनवा का इंट्रोडक्शन दूंगी, कैनवा पे डिजाइन कैसे किया जाता है वो बताऊंगी। उसके बाद क्लास में ही बैठ के आपको वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। हम लोग घर पे उस पर ट्रस्ट नहीं करते। हमको पता है अगर मान लो क्लास में 10 लोग हैं, 10 में से 2 लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे, 8 लोग नहीं करेंगे। सो इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी आपको जितना प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, मोस्ट ऑफ द 99.999 हम लोग क्लास में ही प्रैक्टिस करवा के लेते हैं। तो दैट इज वन ऑफ अवर यूएसपी कि सारे सेशंस आपके प्रैक्टिकल। बहुत लोगों को, आप जो लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं है, जिनको थोड़ा सा लेजी है, उसके लिए भी आपको पर क्लास में आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन, घर पे ऑप्शन नहीं है। घर पे हम लोग असाइनमेंट देंगे, होमवर्क देंगे, पर दैट इज अ सेकेंडरी। क्लास में एग्जांपल मैंने फेसबुक स्टार्ट किया, मैंने फेसबुक पेज बनाना, आपको क्लास में बैठ के ही फेसबुक पेज बनाना है मेरे सामने। क्यों? क्योंकि एक तो आप कंप्लीट करेंगे टास्क, और जब आप लोगों को एग्जाम्पल मैंने सिखा दिया, आप बोलेंगे घर पे जाके जैसे करेंगे नहीं करेंगे आई डोंट नो, प्रॉब्लम आया किसको पूछेंगे घर पे, क्योंकि क्लास तो नेक्स्ट डे होगा ना, राइट? आप मुझे व्हाट्सएप में कितनी ही क्वेरी पूछ सकते हैं, क्लियर भी नहीं होगा। तो अगर क्लास पे बैठ के मेरे सामने प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ पे भी डाउट आता है इजीली आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और आप मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपके सारे सेशंस हो गए। फेसबुक एड स्टार्ट होगा, फेसबुक एड का मैं मैकेनिज्म बताऊंगी, कैसे होता है, क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, सिखाऊंगी। और उससे के बाद सिमिलर टू दैट आपको क्लास में ही बैठ के फेसबुक एड डिजाइन करनी है। ओके, फ्रॉम द डे 1 टू डे 60 सब कुछ ऐसा ही रहेगा। सारे सेशंस प्रैक्टिकल रहेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्लास में, तभी आप लोगों को 60 डेज के बाद आपको अच्छी खासी डिजिटल मार्केटिंग आएगी। जो लोग प्रैक्टिस करेंगे उसको उसका आउटपुट डेफिनेटली आफ्टर 60 डेज मिलेगा। ओके, सो ये याद रखिए, सारे सेशंस लाइव रहेंगे, सारे सेशंस प्रैक्टिकल रहेंगे। क्लास में आने के बाद मेहनत डेफिनेटली करना पड़ेगा। सिर्फ आइडियली बैठ के क्लासेस होने वाले हैं क्या? नहीं, तो आपको बहुत कुछ बहुत मतलब अच्छी बेनिफिट प्रैक्टिस है, करना है। सॉरी, ये बहुत प्लस पॉइंट है ये चीज। यस डेफिनेटली, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस।
प्रैक्टिकली और लाइव नहीं करेंगे तो क्या ही बेनिफिट रहेगा। मैं सिखाऊंगी घर पे क्योंकि देखिए अभी आप में से सारे लोग, कोई जॉब के लिए है, कोई किसी का, हर इसका कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर पे जाके हम लोग किसी की ये नहीं ले सकते, राइट। पता नहीं क्या काम करेंगे, तो दैट्स वाई 2 आवर्स डेडिकेटेड क्लासेस को देना है, जितना होगा उतना क्लास में आपको प्रैक्टिस करना है। मैं सफिशिएंट टाइम देते हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत मतलब फास्ट फास्ट जाएंगे तो आपका टाइम नहीं मिलेगा। डेफिनेटली जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए उतना क्लास में दिया जाएगा। ओके, सो थोड़ा सा अभी 1 वीक के लिए थोड़ा सा हम लोग स्लो ही जाएंगे, क्योंकि क्या है ना, अभी आप में से अब जितने भी लोग हैं ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की एडमिशन हुई है, तो जो है अभी मुझे पता नहीं, कल से मुझे पता चलेगा कि आपकी स्पीड क्या है, मेरी स्पीड क्या है, तो थोड़ा सा 1 वीक आपकी स्पीड मेरी स्पीड मैच होने के लिए टाइम लगेगा, राइट। तो थोड़ा सा हम लोग एवरेज स्पीड से ही जाएंगे, नॉट स्लो नॉट सो फास्ट, राइट। आपकी मेरी ऐसे स्पीड से जाएंगे कि आपको भी समझ में आए और मेरा भी एक्सप्लेनेशन हो। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग 1 वीक थोड़े से स्लो ही जाएंगे, ज्यादा फास्ट जाने की जरूरत है। फ्रॉम द स्क्रैच थोड़ा सा एक बार मेरी फ्रिक्वेंसी आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो गई, आप सेकेंड वीक से आप ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहते, कुछ भी नहीं। जिसको भी लग रहा है कि नहीं आएगा, डेफिनेटली अगर आपको जितना मैंने बताया उतना अगर आप क्लास में करते हो, सीरियस रहते हो, डिसिप्लिन, तो आपको डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग आती है। लास्ट बैच का ही एक्सपीरियंस बताती हूँ, बहुत सारे लोग थे मतलब जिनका नियर अबाउट 10 years का गैप था, बहुत ये थे, सस्पिशियस थे कि लगाना नहीं लगाना, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आज क्लास में सबसे ज्यादा एक्टिव वही है। आप में भी वो विलिंगनेस होना चाहिए कि नहीं, हम लोगों को करना है प्रैक्टिकली सब कुछ, तो जितना आप इंटरेस्ट शोकेस करेंगे मेरा तो उससे 100 टाइम आपको डेफिनेटली मेरे साइड से मिलेगा। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट द कोर्स एंड दैट इज ऑल अबाउट द सिलेबस। ओके, इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेश्चन है, आई एम ओपनिंग सेशन फॉर द डाउट्स। ओके, अभी आपके जो भी डाउट्स है आप क्लियर कर सकते हैं मेरे साइड से। मैंने सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, और आपको कैसे हमारे सेशंस चलने वाले हैं, वो एक मैंने इंट्रोड्यूस दिया। इसके बाद भी आपके नंबर मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, तो यस, ओपन फॉर द क्वेश्चंस। यस, बोलिए। एक चीज वन बाय जानना वन। चाहती हूँ, जैसे अपवर्क, फ्रीलांस या फीवर, जो भी साइट्स है फ्रीलांसिंग की, ये सब आप हम मतलब हमें गाइड करेंगे इसमें कैसे क्या करते हैं, बिडिंग सिस्टम है जो भी है। आप, यस, मैं फ्रीलांसिंग की वेबसाइट बताऊंगी, पर उससे बेटर पे आपको डिजिटल मार्केटिंग में क्लाइंट कैसे लाना वो भी बताऊंगी। फ्रीलांसिंग में मैं ठीक वो है, बताऊंगी ठीक कि है। नॉर्मल एग्जांपल अपवर्क, फ्रीलांसर, गुरु की बात करें आप, राइट। हाँ, करेक्ट करेक्ट, हाँ क्योंकि अपवर्क हाँ, में मैंने ट्राई किया था, पर उसमें क्या बिडिंग सिस्टम है, मतलब मैं मतलब 2-3 बार ट्राई की, पर मुझे समझ नहीं आया। वो बताऊंगी, पर ना वो डेड हो गया, मतलब वहां पे बहुत कंपटीशन है, वहां से कस्टमर्स लाना ओके। एक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है। उसके अलावा भी वो तो एक अच्छा। आपका बताऊंगी, पर उसके हाँ, और भी अलावा भी प्लेटफॉर्म होगा। हम्म। प्लेटफॉर्म नहीं, जो डिजिटल मार्केटिंग जो सीखोगे ना उसके थ्रू ही आप लोग क्लाइंट्स ला सकते हो, तो वो एक अनदर वे जो आपको फ्रीलांसिंग में समझ में आएगा। ओके, डेफिनेटली आपको अपवर्क का बिडिंग बिडिंग का थोड़ा सा अलग होता है, मैं बताऊंगी प्लेटफॉर्म की क्या लिमिटेशन है, उसके अलावा भी मैं बताऊंगी कि कैसे आप फ्रीलांसिंग के लिए क्लाइंट ला सकते हैं। ओके, ओके ओके, थैंक यू। मैम वन मोर थिंग, यस। जैसे आपने बोला कि सिलेबस यू कैन डाउनलोड सो दैट वी कैन गो थ्रू द टॉपिक्स। नाउ रिगार्डिंग द मटेरियल, विल वी गेट एनीथिंग लाइक यस, सॉफ्ट कॉपी में? यस यस, सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, फेसबुक एड की कॉपी है, गूगल एड्स के नोट्स है, एसईओ के नोट्स है, जैसे जैसे टॉपिक होते हैं वैसे वैसे नोट्स आपको आ जाएंगे ग्रुप में। ओके, Yes, because maybe even after practical, if we have any doubts or we want to revise anything, so if material would be there, that would be वन beneficial. ऑफ द सैंपल दिखा देते हो तो आपके मन से कंफ्यूजन चला जाएगा, फेसबुक एड नोट्स। ओके, मटेरियल रिक्वायर्ड है, कितना भी प्रैक्टिकली बताएंगे, रिवाइज तो करना पड़ेगा, राइट। That's true. यस, राइट। ये देखिए फेसबुक ऐड के नोट्स है, जैसे आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा। इफ यू वांट एनीथिंग मोर आप मुझे बताइए, मैं और ऐड करके दूंगी, राइट। व्हाट इज फेसबुक ऐड, डेफिनेटली एक्सप्लेन किया, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फेसबुक ऐड, राइट। व्हाई यूज द फेसबुक एड्स, राइट। व्हाट इज अ फेसबुक बिडिंग स्ट्रेटेजी, राइट, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। मेन फेसबुक बिडिंग स्ट्रेटेजी, हर बिडिंग स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल्स, राइट। ऑब्जेक्टिव्स, मेट्रिक्स, इसका मतलब क्या है, राइट, बिडिंग स्ट्रेटेजी कौन सा अच्छा है, राइट, ये सब कुछ आपको नोट्स के फॉर्मेट में दिया। यही सब कुछ सिखाया जाएगा, ऐसा नहीं कि नोट्स अलग है सिखाना अलग है, यही कुछ सब कुछ सिखाया जाएगा। ओके, तो इस तरह के फॉर्मेट में आपको व्हाट इज सीटीआर, ओके, कैसे इंप्रूव किया जाता है, रीजंस, ओके, सिमिलर टू, ये सारी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही चाहिए था ना नोट्स, राइट। Yes, yes, yes. Ma'am, यस, सिमिलर टू गूगल के भी मिल जाएंगे। हाँ, बोलिए। ma'am, by any chance, if we miss any class, do we have access to the recorded classes? यस यस यस, और लाइव सेशंस रिकॉर्डेड होते हैं आपके, आपको एक ड्राइव का एक्सेस दिया जाता है, एंड थ्रू दैट ड्राइव आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। एक तो रिवीजन के लिए भी वो आपके लिए है, एंड एक
समटाइम्स अगर आप मिस हो जाता है, मिस अवॉइड करना है, बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग होता है तो मिस करता है, पर यस इमरजेंसी में अगर एक आधा सेशन आपका मिस हो जाता है तो यू कैन रिवाइज फ्रॉम द रिकॉर्डिंग, या आप उसको कवर अप कर सकते हैं रिकॉर्डिंग से। ओके Ma'am, I want to ask that how will we prepare for the certification exams? Will we start after the course is over, or it will go side by side along with the साइड बाय course? साइड मतलब जैसे अभी गूगल एड का टॉपिक खत्म हुआ तो मैं सर्टिफिकेशन की लिंक्स बताऊंगी कि सर्टिफिकेट के रूल्स क्या होते हैं, उसके बाद यू कैन डाउनलोड, उसके बाद जब एसईओ खत्म होगा तो एसईओ के सर्टिफिकेशन, जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते हैं मैं लिंक्स शेयर करती रहूंगी। ओके Thank you. Hello. बोलिए। Hello. हाँ बोलिए ना। यस Yes, ma'am. I'm audible. Hello. हाँ यस यू आर ऑडिबल। Hello. यस अरे I can't बोलिए। hear anyone. Hello. गाइस आई एम ऑडिबल ना? Yes. Yeah. Now. So, हाँ ma'am, बोलिए। is 2 months time enough? Like many of the institutes are providing like 6 months and 1 year and PG as well. So, it's 2 months from basic to advanced enough for this digital marketing? यस यस इनफ इनफ। Okay. अभी बहुत सारे लोगों ने अपने 6 मंथ्स का भी देखा होगा ना, उनके क्या होते हैं ना, अल्टरनेट डेज के क्लासेस होते हैं, मंडे टू मतलब 3 दिन के होते अच्छा. हैं, ऐसा होता है। नॉर्मली अभी हम लोग मंडे टू फ्राइडे 2 आवर्स, किसी का 1 आवर्स का होता है, कोई कोई प्रैक्टिकल नहीं लेते, राइट, बहुत कुछ होता है, तो उसके हिसाब से वो टाइमिंग चेंज होता है, बट सफिशियंट है 2 मंथ्स। ओके डेली बेसिस पे, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे डेली है ना, तो दैट्स वाई सफिशियंट है। Okay. Thank you, ma'am. यस वेलकम। आई थिंक रोहित ने भी रेज किया था, बोलिए रोहित। मैम 2 महीने के बाद में क्या होगा? क्या होगा, हाँ गुड क्वेश्चन, राइट। 2 मंथ्स के बाद जैसे एग्जांपल मेरे साइड से टेक्निकल खत्म होगा, वेरी गुड, याद दिलाया। टेक्निकल 2 मंथ्स के बाद हमारा मेरे साइड से खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन लिया जाएगा फ्रॉम अवर एचआर टीम। ओके वही इंटरव्यूज में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, सब कुछ वो किया जाएगा। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन दैट जो भी क्लास में सीखा है उसके हिसाब से आपका मॉक इंटरव्यूज लिए जाएंगे। ओके मॉक इंटरव्यूज, जो जो लोग मॉक इंटरव्यूज क्लियर करते हैं उनको प्लेसमेंट ग्रुप में एड ऑन किया जाता है और वहां से आपका प्लेसमेंट स्टार्ट होता है। ओके तो आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स प्लेसमेंट स्टार्ट होता है। सेकेंड, अभी हमारा लाइव पैनल ऑन हुआ है, डैशबोर्ड ओपन हुआ है, जहां पे रेगुलर बेसिस पे प्रेजेंटी ली जाती है। ओके तो क्लास प्रेजेंटी भी मैंडेटरी है, अगर आप लोग बिल्कुल भी मिस करेंगे तो फिर प्लेसमेंट के लिए, तो नॉर्मली अगर आप सिर्फ 100% क्लासेस में से सिर्फ 10 दिन का पूरा आपने किया है तो राइट ऐसा नहीं चलेगा, तो आपको प्रेजेंट भी रहना पड़ेगा क्लास में। तो हमारे यहाँ पे डेली बेसिस पे तो आपका लास्ट में प्रेजेंटी स्कोर भी आता है। ओके तो वो भी एक बात ध्यान में रखिए। तो आपको वो है, और हाँ मैंने जैसे बोला था पहले टेक्निकल पार्ट खत्म, देन इंटरव्यू प्रिपरेशन, देन मॉक इंटरव्यूज। अगर मेरे पूरे सारे सेशंस अटेंड करते हो मॉक इंटरव्यू इजीली क्रैक कर पाओगे। ओके एंड मॉक इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद देन वो आपको प्लेसमेंट ग्रुप में ऐड करते हैं और वहां से फिर आपका प्लेसमेंट स्टार्ट। क्लियर? मैम मेरे दोस्त ने तो किया था, तो वो 6 महीने का किया था। वो डिग्री मतलब वो डिप्लोमा टाइप है, तो वही है, मंडे टू 3 दिन ही होता है, पूरा 6 मंथ्स का नहीं, सॉरी डेली बेसिस पे नहीं होता है। ओके ओके मैम। यस वहां पे कैसे होता है ना, नॉर्मली थोड़ा सा स्लो वे से, थोड़ा सा मतलब वो अलग वे से थोड़ा सा वे होता है सिखाने का। अच्छा ही है अगर इफ यू वांट टू गो फॉर दिस, पर यहाँ पे नॉर्मली जो भी इंडस्ट्री लेवल पे वो आपको प्रिपेयर किया जाता है, वो थोड़ा सा अंडर ग्रेजुएट वगैरह होते हैं, तो थोड़ा सा वो लोग जा सकते हैं, बट अभी आपको 2 मंथ्स में आप लोग इनफ हो प्रैक्टिस करने के लिए, सो यू कैन गो विद दिस। एंड वहाँ पे आई थिंक थोड़े से रेगुलर क्लासेस, यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे 2 आवर्स का टाइमिंग होता है, तो दैट्स वाई, तो ये 2 मंथ्स में कवर अप होता है आपका। हाँ बोलिए ऋतुजा। हाँ मैम, एक्चुअली मैं अप्लाई कर रही हूँ पहले से ही, लेकिन रिलेवेंट जॉब्स मुझे मतलब नहीं मिल रहे, कोई और ही जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही है। सो आप क्या ये किस में हो? सर्टिफिकेशन? आपका मैंने बैकग्राउंड क्या डिजिटल है? मार्केटिंग किया है, मैंने एमबीए मार्केटिंग एमबीए मार्केटिंग की है ना? किया। ओके हाँ हाँ। और आप अप्लाई किसके लिए कर रहे हो? डिजिटल मार्केटिंग के लिए कर रही हूँ, और मैंने सीखा भी है, मतलब यूट्यूब से सीखा है, लेकिन सर्टिफिकेशंस वगैरह कुछ नहीं है। हम्म। लेकिन नौकरी का प्रोफाइल वगैरह अपडेट किया है, लेकिन उसके रिलेवेंट कोई जॉब नहीं आ रहा। तो ये सर्टिफिकेशन करने के बाद और आपसे जो हेल्प मिलेगी हम्म वो क्या सही दिशा में मिलेगी क्या, या मेरे मेरे को परफॉर्मेंस मार्केटिंग अगर करनी है जॉब हम्म जाके आगे, हम्म तो उस फील्ड में ही जॉब मिलेगी क्या, या ऐसा कुछ है कि जो कुछ भी अवेलेबल जॉब्स है वो है क्या, मतलब उस फील्ड में? यस डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैंने कहा प्लेसमेंट के ग्रुप में आपको डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड सारे जॉब्स अवेलेबल है। अभी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के ही प्रमोट करेंगे, राइट।
अगर कहीं पे ओपनिंग हमारे यहाँ पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग की होगी तो आपको डेफिनेटली मिलेगी। डिजिटल मार्केटिंग का एडवांस मतलब एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर को परफॉर्मेंस मार्केटर कहा जाता है, राइट। तो पहले एज अ यस। पोजीशन आपको डिजिटल मार्केटिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर। जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है देन थोड़ा सा आपका एड बजट, मतलब अभी बहुत सारे लोग मिनिमम 10 करोड़ का जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट रन किया, फिर वो एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर ज्वाइन करते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और एक्सपीरियंस के बाद एज अ परफॉर्मेंस लग सकते हैं। नॉर्मल स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस मार्केटर का जॉब मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज एक्सपीरियंस मार्केटर रिक्वायर्ड होता है। बजट बहुत इंपॉर्टेंट गेम प्ले करता है ना डिजिटल मार्केटिंग में, तो वो हैंडल करते आना चाहिए। तो एज अ फ्रेशर किसी को भी नहीं देंगे, बड़े बड़े ब्रांड्स वहां पे होते रहे। तो वो है। और रिलेटेड टू प्लेसमेंट, मैंने जैसे कहा प्लेसमेंट ग्रुप में एड ऑन किया जाता है। बहुत सारे लोगों जैसे बहुत सारे लोगों का सवाल भी हो सकता है आपके माइंड में कि वर्क फ्रॉम होम मिलता है, करें। ये याद रखिए 10 जॉब में से दो जॉब वर्क फ्रॉम होम के हो सकते हैं, 8 जॉब आपको बेसिकली वर्क फ्रॉम ऑफिस के ही मिलने के चांसेस है, क्योंकि दैट इज अ रियलिटी। हम लोग फेक कमिटमेंट आपसे नहीं कर सकते रहे कि नहीं आपको मिल ही जाएगा। रेयर अपॉर्चुनिटी, तो आपको उतना प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि एक ही वर्क फ्रॉम होम की कंपनी है और वहां पे फिर आपका क्रैक हो जाए। तो फॉर द डिटेल, मतलब अभी बहुत सारे लोग होंगे कि पुणे से नहीं होंगे, पुणे में चाहिए, मुंबई में किसी को जॉब चाहिए वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला, या किसी को और मेट्रो सिटीज में चाहिए। तो वो आपको अपने जो एचआर का मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशन होगा ना, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा। और रिलेटेड टू कहाँ पे प्लेस्ड हो सकता है, कितनी कंपनीज में प्लेस्ड हो चुके हैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स, अगर इसका आपको रिकॉर्ड चाहिए तो जिस कोऑर्डिनेटर से आप अभी बात कर रहे हैं ना, वो लोग आपको और डिटेल में प्लेसमेंट के रिलेटेड बता देंगे, ओके, कि कितने हुए हैं, क्या हुआ है, राइट। तो वहां से भी आपको एक आइडिया आ सकती है। बट डेफिनेटली जो हमारे यहाँ पे होते हैं वो रिलेवेंट जॉब्स ही हम लोग ऐड ऑन करेंगे और वहीं से आपको मिलेंगे प्लेसमेंट ग्रुप से। ओके मैम, ऋतुजा, थैंक यू यस, मैम। और वेलकम। अब सॉरी, बोलिए जो बोलिए। हाँ, अब एआई का बहुत सारा यूज हो रहा है ना, तो हम्म, ये डिजिटल मार्केटिंग में हम एआई का यूज करके कैसे जो यस, कुछ भी कर जहां सकते जहां हैं ये सब। रिक्वायर्ड है ऋतुजा वहां वहां पे एआई आएगा अभी, ओके। या तो अभी कैसा हुआ है ना, तो मतलब एआई अभी मैंने इसलिए सेपरेट इंक्लूड ही नहीं किया क्योंकि हर इसको मुझे नॉर्मल भी बताना पड़ेगा और एआई का भी वे बताना पड़ेगा, क्योंकि एआई इज द फ्यूचर नहीं है, एआई इज द प्रेजेंट नाउ, राइट। तो या एआई इंक्लूडेड है आपके इसमें, ओके। जहां जहां पे जिस पर मैंने जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां वहां पे एआई को एड ऑन किया है आपके सिलेबस में, ओके। ओके। और हमें रिज्यूमे में प्रोजेक्ट तो मस्ट होते हैं ना, मतलब इम्प्रेशन डालने के लिए, तो आप अगर मतलब हेल्प करेंगे ना कि हम ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए सो हाँ दैट डेफिनेटली, पोर्टफोलियो अभी बन जैसे जाए। एग्जांपल आप अपने क्लास में अभी हम लोग आपको वेबसाइट देंगे, वो आपका एक प्रोजेक्ट है। फेसबुक ऐड डिजाइन कर सकते हैं, आपका वो प्रोजेक्ट है। गूगल ऐड डिजाइन कीजिए, वो आपका प्रोजेक्ट है। तो वो सारे प्रोजेक्ट्स आप अपने इसमें सीरीज में ऐड ऑन कर सकते हैं। वेबसाइट बनाना, वेबसाइट का एसईओ बनाना, दीज आर ऑल द प्रोडक्ट। किसी कंपनी में जाओगे, किसी वेबसाइट को बनाओगे या उसका एसईओ करोगे, वही प्रोजेक्ट है ना आपके फील्ड में, राइट। तो जो भी क्लास में, इसीलिए तो मैंने कहा क्लासेस सारा प्रैक्टिकल है, तो सब कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हो। फेसबुक ऐड में बनाऊंगी, इफ यू वांट टू रन द एड्स, आप पैसे डाल के उसको रन कीजिए, आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। फेसबुक ऐड रन किया मेरा, आप अपना एग्जांपल इंस्टाग्राम का पेज बनाइए, किसी भी नाम से इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाइए, इंस्टाग्राम के पेजेस बनाइए, फेसबुक के पेजेस बनाइए, उसको बिल्ड कीजिए, उस पे डेली बेसिस पे पोस्ट डालिए, डेली बेसिस पे। वो क्या है, प्रोजेक्ट है। अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो सोशल मीडिया एक्सपर्ट, आपका काम क्या होता है, उसके सोशल मीडिया को ग्रो करना। तो रादर देन स्टार्ट करो डे वन से, जो मैं आपको गाइड करूंगी कि आप अपने इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट बनाए, आप अपने फेसबुक पेजेस बनाए, डेली बेसिस पे उस पर अपलोड कीजिए, कंटेंट डालिए, फॉलोअर कीजिए। आफ्टर 2 मंथ जब आप इंटरव्यूज में जाएंगे, आप उसको दिखा सकते हैं कि ये मेरा पेज है, मैंने इतना इसमें कंटेंट शेयर किया, इतने ऐसा ऐसा है, राइट। तो है, लेकिन ऐसे, एड हाँ, कैंपेन्स के लिए तो फिर पे करना पड़ता है ना देन। यस, पेड तो पे करना पड़ता है, यस। ओके मैम, ओके। बोलिए। हम डायरेक्टली फ्रीलांसिंग के लिए जा सकते हैं क्या? वी नीड जॉब एक्सपीरियंस फर्स्ट, देन वी कैन एंटर इन फ्रीलांस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हेमलता, बट ना डिपेंडिंग, सब्जेक्टिव है। अभी कैसा होता है ना, 2 मंथ के बाद किसी को बहुत कॉन्फिडेंस आता है ना, तो दे डायरेक्टली गो फॉर द फ्रीलांसिंग। पर किसी किसी को ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे उतना अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया है, तो 6 मंथ्स का मैं एक कंपनी में एक्सपीरियंस ले लेती हूँ, उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग लेती हूँ। तो नो वन विल आस्क कि कंपनी में कितना है, पर आप उतना इनफ कॉन्फिडेंट होनी चाहिए कि मैं प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकता हूँ या हैंडल कर सकती हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तो यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट ऑफ फ्रीलांसिंग। अगर आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा एक्सपीरियंस, अभी कैसे होता है, सब्जेक्टिव है। मैंने बोला कि अगर 2 मंथ्स के बाद नहीं इनफ कॉन्फिडेंट, मैं तो बोल रही हूँ कि इनफ कॉन्फिडेंट, पर हर किसी की पर्सनालिटी अलग है ना।
तो अगर आप लग रहा है कि नहीं यार आई Means कैन, it's मतलब up to us that we can अप मतलब टू अस, कितना मतलब हाँ, अगर इफ यू आर इनफ कॉन्फिडेंट कि नहीं यार मैं कर सकता, अभी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है जो अभी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, पर ऐसे बहुत सारे जो जॉब भी कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आप पे भी है कि आपको कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली यू कैन गो No, विद means द। I have a question that which is better, like job or freelancing, because freelancing is like a business. We get enough income for that, like stable or हाँ वही ना, अभी अगर मेरा सजेशन पर्सनली ले रहे हो तो एटलीस्ट 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लो कंपनी से, ओके, एंड देन गो फॉर द फ्रीलांसिंग, तो वो बेटर रहेगा। अगर आप लोग थोड़ा सा ये है कि क्या होता है ना, जब आप किसी कंपनी में जाते हो नॉर्मल, तो क्लाइंट्स के साथ कैसे बात करना है, कैसे प्रेशर को हैंडल करना है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, क्लाइंट से कम्युनिकेट करना, क्लाइंट को कौन से बातें बताना है, तो वो मैं पूरा फ्रीलांसिंग में आपको सिखाऊंगी। अगर इफ यू आर इनफ कॉन्फिडेंट कि नहीं यार मैं हैंडल कर सकता हूँ, तो अभी मैं एक लास्ट बैच का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एक स्टूडेंट है उसको भी यही सेम रह रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट लिया स्टार्टिंग में, तो उनको कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार मैं ले सकती हूँ, मतलब उन्होंने ज्यादा पैसे नहीं चार्ज किए, 10,000 तक ही चार्ज किए, पर उन्होंने वो कॉन्फिडेंस के लिए किया, फिर उनको कॉन्फिडेंस है अरे यार मैं तो ये इजीली हैंडल कर सकती हूँ, तो फिर उन्होंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, कोई जॉब नहीं अप्लाई किया। ओके, तो ये भी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो यस यू कैन गो, पर अगर आपके पास टाइमिंग है तो आप 6 मंथ कंपनी में जॉब करके भी फ्रीलांसिंग के लिए जा सकते हैं। ओके, हेलो मैम। हाँ बोलिए। सो इफ अब हम 2 मंथ बाद अभी एंटर करेंगे कोई भी जॉब में एज अ फ्रेशर या समथिंग, सो हाँ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम सीटीसी, और उसके बाद सपोज इन द जॉब में कैसे रह के हम फ्यूचरिस्टिकली रियलिस्टिकली थोड़ा अपस्किल करते करते जा सकते हैं आगे, यस क्या एक्सपेक्ट कर डेफिनेटली। सकते हैं? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप लोगों ने जब मुझे ना मैं स्कोप ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लेन कर रही थी, तो वहाँ पे सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी था, तो अभी जैसे कि सर सिर्फ किसी को सोशल मीडिया ही पसंद है, तो वो सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट है, सोशल मीडिया मैनेजर ऐसे ग्रो कर सकते हैं। जिसको सिर्फ एसईओ में इंटरेस्ट आया वो एसईओ स्पेशलिस्ट, एसईओ एग्जीक्यूटिव एंड एसईओ मैनेजर ऐसे ग्रो कर सकते हैं। ओके, और आपको ओके पूरे फील्ड में ना अच्छा सारे टॉपिक में आपको ये करना है, ग्रो करना है, तो एज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोजीशन होती है, तो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, ऐसे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। सेकंड जो आपका मैम क्वेश्चन एक था, हाँ एक मिनट, या एक मिनट हाँ। या आपका जो पैकेज है 1.8 टू 3.5 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड देन 30% ग्रो, जैसे जैसे अभी जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे आप अपने जहां पे भी जॉब के लिए जा रहे हो, राइट, जॉब के लिए वहां पे आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट पे ही काम करना पड़ता है, वो आपका एक्सपीरियंस एड ऑन हो जाता है 30%। इसके साथ मैं रिसोर्सेज बताऊंगी कि कहाँ से अपडेट करना है खुद का नॉलेज, या अपकमिंग थोड़े से नॉर्मली बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे डिटेल अपडेशन आते हैं फ्यूचर्स के, वो होता है थोड़ा सा यूट्यूब से, एंड ऐसे रिसोर्सेज बताऊंगी जहां से आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं हमेशा। एग्जाम्पल आप थोड़ा डिसाइड कीजिए, आपको 2 मंथ्स में बहुत आइडिया आ जाएगी कि आपको स्पेसिफिकली किस देखिए मेरा ये सजेशन रहता है हमेशा, मुझे डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया पसंद है तो आपको भी सोशल मीडिया ही पसंद होगा, ऐसा नहीं होता ना, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे तो सब कुछ करना है पर एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप हर इसका इंटरेस्ट अलग होता है, हर इसका यूएसपी अलग होती है, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है 2 मंथ्स में कि मुझे सोशल मीडिया अच्छे से करते आ रहा है, या मुझे सोशल मीडिया में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, या मुझे एसईओ में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो एक्सप्लोर करना है, वही फील्ड में आपको क्या करना है, ग्रो। तो एसईओ एग्जीक्यूटिव रिसोर्सेज बताऊंगी कैसे ग्रो करना है, और उसके बाद डेफिनेटली आप कंपनी उसी जॉब में रह के आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। यस, और Ma'am, कुछ क्वेश्चन था जो मैंने नहीं किया, आपका एड्रेस, सारे क्वेश्चंस किए ना एड्रेस आपके। Ma'am, I have one more question. What will हाँ be the बोलिए ना। duration of this placement training? For how long it will happen? The placement training after the main ज, course? जब तक आप मतलब, सॉरी फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन आपका। मैम मतलब ये जो प्लेसमेंट ट्रेनिंग होगा आफ्टर द हम्म, मेन कोर्स, ये कितने दिन तक चलेगा, मतलब जब फॉर तक हाउ आपको लॉन्ग? जॉब नहीं लगता है तब तक, ओके, जब थैंक तक यू। जॉब नहीं लगता है तब तक प्लेसमेंट सपोर्ट अवेलेबल है। ओके, ओके, ऐसा नहीं, कभी थैंक कभी यू। कोई इंस्टीट्यूट सिर्फ 1 मंथ का देते हैं, 2 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 1 ईयर का, नहीं, जब तक जॉब नहीं लगता है तब तक वो प्लेसमेंट सपोर्ट अवेलेबल है। ओके, ओके, थैंक यू। यस, हाँ बोलिए, रोहित बोलिए, ऋतुजा बोलिए। मैम पंजाब में आपका कोई मतलब ब्रांच है? ऑफलाइन ब्रांच नहीं है वहाँ पे। ओके यस, हाँ बोलिए, और किसी का तो भी डाउट था, ऋतुजा का था क्या डाउट, ऋतुजा है, ऋतुजा सॉरी। हेलो हाँ बोलिए। हेलो। हाँ मैम, आप
प्लेसमेंट के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, मतलब आप कॉल शेड्यूल करेंगे हमारा पोर्टफोलियो से बिल्ड करने के लिए, मतलब लिंक्डइन का हो, नौकरी का हो, ये लिंक्डइन का तो मैं करेंगे। ही लिंक्डइन का तो मैं ही बताऊंगी ना कैसे करना है। प्लेसमेंट का या सपोर्ट मतलब क्या होता है ना, जैसे एग्जांपल हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जहाँ पे रिलेटेड ओपनिंग्स आती है, वो आपसे फॉर्म फिल आउट करेंगे, तो मतलब हम आपको रिकमेंडेड करें, वहां पे आपको इंटरव्यू पे जाना है, तो डेफिनेटली वी आर शेड्यूलिंग फॉर यू, राइट। नो सिर्फ नौकरी पे प्रोफाइल अपडेट करके नहीं दे रहे। तो ओके ओके ओके। आपको स्पेसिफिकली अभी मेरे पास यहाँ पे व्हाट्सएप पे लॉग इन है क्या, देखते हैं। इसमें लॉगिन नहीं है रे मेरा, PIDM। ओके, तो मेरा ना एक हमारा प्लेसमेंट का ग्रुप है जिसमें आपको डेली बेसिस पे ना ओपनिंग्स आती हैं। मेरे सॉरी, वो ना दूसरा मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, उसमें है ये, ठीक है। तो वहां पे ना आपको डेली बेसिस पे क्या होगा, जैसे एग्जांपल कंपनी XYZ इज हायरिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न, तो वो आपको वहां पे पोजीशन डालेंगे, आपको वहां पे अप्लाई करना है। एंड हम लोग आपका जो डेटा होता है उनके साथ शेड्यूल करते हैं, और हमारे HR का और उनके HR का कनेक्शन होता है, वो आपको गाइड करते हैं। तो सिर्फ हम लोग आपको नौकरी प्रोफाइल अपडेट करके नहीं दे रहे, तो वी आर हेल्पिंग यू फॉर द प्लेसमेंट असिस्टेंस। ओके, यस ओके। यस, बोलिए हर्षदा, बोलिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ मैम, अभी हम्म 3 दिन का गैप हुआ है, 2 साल 4 साल या 1 साल हम्म करियर में, तो वो रिस्टार्ट कर पाएंगे ये डिजिटल मार्केटिंग यस कोर्स से? यस यस, कर पाएंगे डेफिनेटली। ठीक है, अभी आप लोगों ने सवाल ऐसा पूछा ही है, तो मैं अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। एज अ बैकग्राउंड, आई एम ए इंजीनियर। ओके, आई एम ए इंजीनियर। आप जैसे अभी दो लोग हैं क्लास में जिन्होंने प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC, राइट। आई एम ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द UPSC, राइट। बहुत बैक की स्टोरी है मेरी, अभी आप लोगों ने सवाल पूछा है इसलिए मैं बता रही हूँ। सो नियर अबाउट आई हैव ऑल्सो 2 years ऑफ गैप, बट वही कुछ नहीं हुआ मेरा UPSC में, राइट। ट्राई तो बहुत किया था, राइट, बाद में भी किया पर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने अपना करियर एज ट्रांसफर किया डिजिटल मार्केटिंग में। तो एक आपको कॉन्फिडेंस है इसलिए मैं बता रही हूँ कि मेरा भी करियर में 2 years का गैप, राइट। मैंने एज ए इंजीनियर, मेरा कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग हुआ है, पर दैट्स आफ्टर दैट मुझे वो कोडिंग वगैरह नहीं करनी थी, या मुझे अभी वो थोड़ा गैप भी हो गया था, तो मैंने भी ऐसे ही आप ही के जैसे न्यू फील्ड को फाइंड आउट किया। तब डिजिटल मार्केटिंग आज जितनी बूस्ट है उतना नहीं था, पर ठीक है, मेरे लिए वो एक थोड़ा सा इजी वे मुझे लगा, तो दैट्स व्हाई मैंने उसको चूज किया। और आफ्टर दैट राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, राइट। तो दैट इज वन ऑफ माय करियर। पहले मैंने डिजिटल मार्केटिंग में जॉब किया, एंड जैसे क्या मैंने SEO से स्टार्ट किया, तो SEO, फिर गूगल ऐड, फिर फेसबुक, राइट। बहुत सारे E-commerce के लिए ऐड रन किया। राइट नाउ वर्किंग एज अ डिजिटल ट्रेनर विथ यू, राइट। सो डेफिनेटली आपको बूस्ट मिले इसलिए बता रही हूँ, पर दैट इज माय पर्सनल ओरिजिनल स्टोरी, नॉट अ फेक स्टोरी, राइट। पर्सनल स्टोरी है मेरी, कि मैंने भी प्रिपेयर किया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, पर बाई चांस अभी नहीं था लक में, तो नहीं हुआ। ओके, तो जिनको भी ऐसा लगता है अभी एन नंबर ऑफ, अभी बहुत सारे लोगों का पेरेंटिंग की वजह से गैप होता है, किसी का कॉम्पिटिटिव की वजह से होता है। एवरीवन वांट टू गिव अ चांस टू देयर करियर, राइट। आई एम ऑल्सो, कि मुझे यही था कि लास्ट में रिग्रेट ना हो कि एटलीस्ट ट्राई भी नहीं किया, राइट। तो बहुत ट्राई किया उसके बाद भी, पर नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, तो यू हैव टू फाइंड द सेकेंड पाथ ना। एक पाथ पे नहीं रह सकते राइट नाउ। जो कॉम्पिटिटिव के लिए भी दो जनों ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, राइट नाउ कॉम्पिटिटिव इज नॉट सो इजी, बिकॉज ओपनिंग्स कम आती है, बहुत कुछ होता है, उनको पता है कि क्या होता है, राइट। तो बहुत हार्ड होता है। तो एटलीस्ट एक थोड़ा बाद के बाद हमको भी थोड़ा सा स्टेबल होना पड़ता है, तो उसके लिए भी हम लोग दूसरा पाथ स्विच करते हैं। तो इसलिए मैं भी बता रही हूँ कि मेरा भी गैप था, उसके बाद मैंने डिजिटल सीखा और अपने आप को एज अ करियर ट्रांसफर किया। देखिए, गैप होने के बाद वो गैप एक्सप्लेनेबल होना चाहिए कि क्यों गैप लिया था। आप जब इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं तो उतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि ठीक है, मेरा 2 years का गैप है, बट राइट नाउ आई एम, मतलब कोई भी रीजन हो सकते हैं, मैं बताऊंगी कि कैसे उसको करना है, एक्सप्लेन, राइट। तो आपको वो एक्सप्लेन करते आना चाहिए कि ये 2 years का गैप क्यों था, और राइट नाउ वो कॉन्फिडेंस विजिबल होना चाहिए कि नहीं यार, मतलब लास्ट इस वाले बैच में नहीं, एक मॉर्निंग वाले बैच में थे, शी इज ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। तो उनका भी नॉर्मली 2 to 3 years का गैप था। राइट नाउ अभी वो क्या कर रही है, जो उनके इंस्टीट्यूट रहते हैं ना IAS वाले के, विजन IAS, पता होगा किसी को भी,
वहां पे ही डिजिटल मार्केटिंग कर रही है, मतलब एज ए स्टूडेंट थी पर राइट नाउ वहीं पे काम कर रही है, तो नियर अबाउट उनका पैकेज भी अच्छा खासा है। तो यही है, करियर ट्रांसफर करते आना चाहिए, करियर मतलब एज आप एक्सप्लेनेबल होनी चाहिए, अगर गैप है तो वो आपको जस्टिफाई करते आना चाहिए। तो यस, यू कैन गो फॉर द एनी पोजिशन। ओके, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिन लोगों का गैप होता है ना थोड़ा सा, आप लोग ये होते हो, डेफिनेटली होता है, मेरा भी वही था। अभी ये मेरा नियर अबाउट 7-8 ईयर्स की पहले की स्टोरी है, राइट। तो वो टाइम ही बहुत खराब होता है जब आप लोग स्विच कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, पर जो नॉर्मली जो लोग स्विच करना चाहते हैं, 2 इयर्स का, 3 इयर्स का गैप है, 5 इयर्स का गैप है, वो मन में थोड़ा डर लगता है यार कि नए लेटेस्ट स्किल के साथ सीख पाएंगे नहीं पाएंगे, पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। अभी इस अपकमिंग, अभी जो मेरी बाकी की प्रेजेंट बैच चल रही है, एक लड़की का 10 इयर्स का गैप है, फिर भी शी हैज टू कॉन्फिडेंट कि नहीं मैं कर लूंगी, एटलीस्ट कुछ तो कर लेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस रखिए। डेफिनेटली मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कॉन्फिडेंस ऐसे बोलने से आएगा, आज मैं इंस्पायर करूंगी चलिए आप कल मैम का क्लास ज्वाइन कर, ऐसा नहीं होता है। कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, साथ में वो एक दिन में तो नहीं आएगा, राइट। तो वो आप जैसे डेली बेसिस पे क्लासेस करेंगे, आपको भी एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, ओके मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंस आएगा। आप अगर ठीक है आपको कुछ नहीं करना, आप यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बना सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, यूट्यूब थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, यूट्यूब पे नॉर्मल ऑर्गेनिकली वीडियो डालिए, इंस्टा पे शॉर्ट्स बनाइए, कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप कर पाएंगे। खाली बैठने से कुछ तो अच्छा है ना कि एटलीस्ट कुछ करे। करियर गैप में डेफिनेटली मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बहुत वो टाइम बहुत ये होता है जब आप लोग करियर ट्रांसफर बहुत, एक तो इसलिए मैंने वो करियर ट्रांसफॉर्मेशन कर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, नियर अबाउट 10 to 15 इयर्स का एक मेजर डिसीजन होता है, तो सोच संभल के वो डिसीजन लेना पड़ता है, हवे में तो नहीं ले सकते, राइट। तो इसीलिए विथ थोड़ा कॉन्फिडेंस, विथ थोड़ा डिसिप्लिन एंड थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए और मेहनत करने के लिए अगर रेडी हो, तो यू कैन स्विच फ्रॉम एनी फील्ड टू एनी फील्ड। ओके, दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। अंडरस्टूड? Thank you for sharing, ma'am. यस। मैं वैसे किसी बैच में नहीं बता आपकी, आई थिंक इतने बैचेस किए, मेरे फर्स्ट बैच में मैंने अपनी स्टोरी, क्योंकि आज के क्लास में मोस्ट ऑफ 2-3 लोगों ने कॉम्पिटिटिव, तो मेरा भी वो पहले वाला याद आ गया, बहुत सारे लोगों ने गैप बताया, तो वो होता है डेफिनेटली, दैट इज तो लिटिल बिट थोड़ा पेनफुल होता है, बट ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, लाइफ इज अनएक्सपेक्टेबल, कुछ भी हो सकता है, राइट। Yes, UPSC is बोलिए। not something easy to crack. सॉरी, UPSC is a very tough exam to crack, not easy कि नॉट बार सो में हो इजी, जाए. पेशेंस रिक्वायर्ड है। अभी एग्जांपल में Yes. बताती हूँ, मैं अभी हम लोगों ने जैसे अभी आप, ठीक है वो थोड़ा आउट ऑफ जा रहा है, ठीक है अपना स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ, पर आउट ऑफ कॉन्सेप्ट जा रहा है। तो किसी को कुछ और रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग सवाल पूछना है? एनीवन रिलेटेड टू दिस टॉपिक या एनीथिंग? मैम अगर मतलब दूसरे फील्ड में हमने जॉब किया होगा तो उसका भी प्रूफ लगता है क्या, एक्सपीरियंस लेटर या कुछ? अगर ऐड करना है तो कर सकते हैं, अगर तो ऐड किया जरूर। तो उसका एक्सपीरियंस लेटर वगैरह दिखाना पड़ता है क्या बट ऐसा? हाँ, अगर पीएफ वगैरह की बात कर रहे हो तो नॉर्मली स्टार्टअप में तो कोई उतना पूछता नहीं है, तो अगर एमएनसी की बात हुई तो वो पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेंगे नॉर्मल कंपनीज आपको ज्यादा कुछ। मतलब अगर एक्सपीरियंस लेटर नहीं हुआ तो भी चलेगा ना ऐसा, कि वो हाँ, चाहिए होती डॉक्यूमेंट इसे? वो उसके रिलेटेड थोड़ा सा ना एचआर के साथ कंफर्म कीजिए, ये जो सेल्स कोऑर्डिनेटर है ना उनसे पूछिए, क्योंकि ओके ओके। डॉक्यूमेंटेशन आई डोंट मतलब थिंक तो अभी। अगर अदर फील्ड में होगा तो, डिजिटल मार्केट में होगा तो चाहिए होगा, बट अदर फील्ड में होगा तो? नहीं, उतना जरूरी नहीं है उसके लिए। ओके, ओके ओके। हेलो हाँ बोलिए। मैम, जो इंटर्नशिप लेटर मिलने वाला है हम्म वो मतलब ये 2 महीने के बाद फिर इंटर्नशिप करके, या फिर ये कैसे है मतलब? नहीं, वो मिलेगा आपको डायरेक्ट, जो जो आपको कमिटमेंट किया सर्टिफिकेट का, तो वो आपको मिल जाएंगे, उन्होंने बताया था ना कैसे मिलेगा सर्टिफिकेट, कोऑर्डिनेटर ने क्या बताया आपको? नहीं, वो बोले सिर्फ कि इंटर्नशिप लेटर मिलेगा एक कोर्स यस, कंप्लीट करने के बाद। हाँ कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही मिलेगा इंटर्नशिप लेटर। ओके, ओके ओके। यस। Ma'am, where is more job opportunities in the MNCs or the startups for the digital marketing people? बोथ, स्टार्टअप में ज्यादा ओपनिंग्स होती है, स्टार्टअप एंड मिड स्केल में ज्यादा ओपनिंग्स होती है, एक्सपीरियंस के बाद डेफिनेटली एमएनसीज में भी ओपनिंग होती है। ओके, एमएनसीज में भी ओपनिंग होती है, पर एज अ फ्रेशर बहुत थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू स्टार्टअप एंड मिड स्केल। ओके, Okay, thank you. यस। मतलब अभी जैसे एग्जांपल अभी वो बोल रहे थे, यूपीएससी इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, राइट, बहुत क्रैक करने में, बिकॉज उधर कुछ लिखना पड़ता है, सो वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, पेशेंस रिक्वायर्ड होते हैं।
तो जो लोग भी एटलीस्ट 2 लोग कर रहे हैं प्रिपेयर रहिए, करिए एटलीस्ट। पर थोड़ा सा देखिए, मेरा यहाँ पे ना डेड पॉइंट आ गया था, तो दैट्स में मुझे अभी समझ में आता, मैं जितने एफर्ट्स लगा सकते उतना खत्म हो गए थे, तो एक वो पॉइंट आ जाता है कि मन में कि नहीं यार अभी दूसरा कुछ करना पड़ेगा, तो वो होता है। पर इंस्पायर है कि अभी मैं अपना एक जो पर्सनल स्टोरी बता रही थी, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब से एक थी मेरे साथ, मेरी एक फ्रेंड थी। मैंने तो छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पास उतने पेशेंस नहीं थे। आफ्टर 10 years, नियर अबाउट राइट 10 years के बाद शी क्रैक द यूपीएससी, बट आफ्टर 10 years। पर इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड लॉन्ग पेशेंस रिक्वायर्ड, जो मेरे पास डेफिनेटली नहीं थे, मैंने नहीं किया। पर वही है, आपको अपना पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जो करना है उसके लिए डेडिकेशन होना चाहिए उतना, ओके। तो होता है, पर उतना पेशेंस भी होना चाहिए। ऋतुजा के लिए स्पेसिफिकली बता रही हूँ क्योंकि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव, इट्स वेरी डिफिकल्ट, नॉट सो इजी। Yes. Thank you for sharing. It definitely inspired. After 10 years, it requires a lot of patience and इट्स dedication. वेरी लॉट, मतलब कितने, यू नो दैट अभी हम लोग एज अ यू भी, और जो भी लोग बोल रहे कि हम लोग करियर गैप कर रहे हैं, तो करियर गैप में आपको लगता है ना कि एटलीस्ट सब लोग कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स कर रहे हैं, एवरीवन इज Yes. डूइंग गुड, राइट, और हम लोग पढ़ाई Yes. कर रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटिंग Yeah. ऑल्सो ना। Yes. पेशेंस रिक्वायर्ड Yes. होता है, डेली बेसिस पे मोटिवेट होना पड़ता है, तो दैट इज Yes. वन ऑफ Yes. माई, आपको इंस्पायर करने के लिए मैंने वो स्टोरी बताया कि वो आफ्टर Yes. 10 year ऑफ गैप, एंड मैं वन ऑफ, हम लोग 3 लोग गए थे, माई सेकेंड फ्रेंड इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग, मतलब उसने अभी भी छोड़ा नहीं है। मैंने बोला मेरे से नहीं होगा, सो मैंने तो वो छोड़ दिया तब, पर अभी भी करने वाले अभी भी कर रहे हैं। पर वो ही है, आपको समझ में आना चाहिए कि आप कितना उसमें पोटेंशियल डाल सकते हैं, उसके बाद डेफिनेटली अभी देखिए वो लोग इतना कर रहे हैं, तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग तो इजीली कर सकते हैं, राइट। तो डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत as compared to that very easy, very opportunities are available in nowadays, right। यूट्यूब में करियर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बना सकते हैं, राइट, बहुत कुछ है। सिर्फ अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना पड़ता है। इस कोर्स से आपको एटलीस्ट आई ओपनिंग तो होगी कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या फील्ड्स अवेलेबल है, कॉन्फिडेंस आएगा कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है, राइट। तो डेफिनेटली Yes. मेरा काम है, आपको 2 months के बाद वो डेफिनेटली आपको आएगा कॉन्फिडेंस, ओके। बाकी लोग थोड़े बोर हो गए होंगे तो सॉरी फॉर दैट, पर थोड़ा सा एक भी उन्होंने पूछा तो पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल टच आ गया, तो लास्ट कुछ स्टोरी याद आ जाती है, राइट। सॉरी फॉर बाकी लोग थोड़ा बोर हो गए तो सॉरी फॉर दैट, ओके। चलिए, यस, अदर देन दैट कुछ भी सवाल है पूछिए। यस, एनीवन। इसमें यूट्यूब मोनेटाइजिंग पे आएगा क्या मैम? यस, बताऊंगी कैसे होता है, यस डेफिनेटली। यूट्यूब ओके। ऑनलाइन है, वीडियो कैसे बनाना है, टाइटल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, टैग्स कैसे ऐड होते हैं, बहुत कुछ होता है उसमें, ओके। एंड स्क्रीन कैसे ऐड करनी है, मोनेटाइजेशन के रूल्स क्या होते हैं, सब कुछ आएगा यूट्यूब का भी, ओके। एंड और कुछ इंस्टाग्राम सवाल? फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं, वो भी रहते हैं क्या? यस, ऑनलाइन है ना, डिजिटल वही तो है, राइट। डिजिटल का गेम यस। ही वही है। इंस्टा मैंने बताया ना, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स मैंने जब एक्सप्लेन किया था, सोशल मीडिया कैलेंडर, सोशल मीडिया ऑटोमेशन, आप ऑर्गेनिक फॉलोअर कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट, वो। Nikita ma'am, I have one question. बोलिए। यस, बोलिए। हमको मतलब फेसबुक ब्लूप्रिंट एड्स जो होते हैं, ब्लूप्रिंट इज अगेन अ डिफरेंट टर्म, राइट। यस, तो वो भी हमको सिखाएंगे, इंस्टाग्राम ब्लूप्रिंट, और आई हैव मोस्टली हर्ड फेसबुक ब्लूप्रिंट होता है, तो वो भी हमको सिखाया जाएगा क्या? फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन है ना अनुजा? यस यस यस। नहीं, वो सर्टिफिकेशन पेड के मैं आपको मतलब ये एग्जाम करेंगे तो वो हो जाएगा, पर वो अलग पार्ट है। तो नॉर्मल आपको जो रियल टाइम कंपनीज में जो रन किया जाता है, एजेंसी में जो रन किया जाता है, वो सिखाया जाएगा फेसबुक का पूरा, ओके। ओके, नोटेड। हम्म फेसबुक ब्लूप्रिंट के रिलेटेड गाइड कर दूंगी कि एग्जैक्टली क्या होता है वगैरह, पर यस। और कुछ सवाल? बोलिए। अनुजा, भाग्यश्री, गार्गी, हर्षदा, कुछ डाउट है? ये आईफोन के नाम से कौन कनेक्टेड है? आई डोंट नो द नेम, सॉरी। मानसी। रूपाली। ओके, रूपाली। वन प्लस नॉट से कौन कनेक्टेड है? रीनेम कर दीजिए प्लीज आपके नाम, तो मुझे ना आपके नाम लेने में इजी हो जाएगा। प्रिया, ऋतुजा, रोहित, ऋतुजा, सुजीत, पार्थ, क्लियर है सब? Yes, ma'am, no हेमलता। doubts. हाँ जी मैम, सारे क्लियर।
यस, वेरी गुड। ठीक है गाइस, कल से हमारा सेम टाइम पे क्लास स्टार्ट हो जाएगा 7 बजे से। ओके, 7 to 9 आपका क्लास रहेगा। 5 मिनट वेट करेंगे सब लोग ज्वाइन करने से, तो टाइम पे ज्वाइन किया कीजिए। मैं थोड़ा 5 मिनट अगर स्टार्ट भी होता है तो आपको टाइम से ज्वाइन किया कीजिए। तो 7 to 9 हमारा कल से मंडे टू फ्राइडे डेली बेसिस पे क्लास स्टार्ट होगा। सैटरडे संडे छुट्टी होती है। प्रैक्टिस किया कीजिए, जो भी वीक में सिखा रहे हैं, राइट। प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी डिफिकल्टी आती है नेक्स्ट सेशन में आते हैं वो क्लियर कीजिए। फिर से एक बार बता देती हूँ, अगर इफ एनी केस आप कोई सेशन मिस करते हो, मिस नहीं करना, 99% ट्राई करने के सारे सेशन ज्वाइन करें। तो ठीक है, इन इमरजेंसी आपका कोई भी सेशन मिस होता है तो आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाती है। रिकॉर्डिंग से एक तो मिसिंग सेक्शन के लिए भी है एंड रिवाइज करने के लिए आप लोग रिकॉर्डिंग का यूज कर सकते हैं। ओके, Yes, ma'am. यस, एनी क्वेश्चन फॉर मी? एनी क्वेश्चन आपके साइड से? ठीक है, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो यू कैन लीव द सेशन। गुड नाइट गाइस, अच्छा लगा आपको मिलके। कल से प्रैक्टिकली सेशन स्टार्ट Thank करेंगे। you. ओके, वेलकम Thank you, वेलकम ma'am. वेलकम वेलकम गाइस। धन्यवाद मैम जी। Thank you, ma'am. गुड नाइट। ये वन प्लस नॉट के नाम से कौन था? एनीवन है यहाँ पे कि लेफ्ट हुए? ठीक है, वेलकम पार्थ।